भाग्य भगवान है कि सबको जय जय। सम्मानित मंच, आज हमें भाई श्री सूरज जी पूर्णिया ने यहाँ सबको बुलाया। उनका एक विजन है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरे सभी चारों संप्रदायों को एक टेबल पे लाना। और मैंने देखा है कि साल डेढ़ साल में इन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया है। निसंदेह हमारे समाज को इस सब की आवश्यकता है। पूजा पद्धति हम अलग अलग कर सकते हैं, उसमें कोई फेर नहीं है। यहाँ तक सामाजिक या समाज के हित में धर्म की बात होती है, कहीं सरकार से जाना पड़ता है, उसमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है। भाई साहब बकुल जी ने कहा कि आप समाज सरकार के पास जाते हैं तो ये पूछते हैं, सच है। और हमें ये प्रयास करना है कि हम ऐसे मौकों पर एक होकर, अभी बीच में आपने शायद देखा होगा कि शिखर जी और वहाँ का आंदोलन हुआ था पालीताना का, हमने नितिन भाई बोरा यहाँ हैं, उसमें करीब 1 लाख पब्लिक इकट्ठी हुई थी। वैसे ही अभी पारला का मंदिर का हुआ था, तो जैन पूरी एक हुई तो सरकार को झुकना पड़ा। तो मैं दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा की तरफ से सुरेश भाई के साथ में हूँ, और आप जो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात लगे। मैं आपके सब फोटो वीडियो सब देखता रहता हूँ, लेकिन जिस तरह से आप काम करें, निसंदेह आप सफल होंगे, आगे जाएंगे। और हम सबको ये प्रण करना है, हम इनका साथ दें और जैन समाज को एक सूत्र में बांधे। जय जैन। पुण्यशालीओ, સુરેશભાઈએ જે સ્ટેપ ઉપાડ્યું છે ખરેખર બહુ અનુમોદનીય છે। જ્યારે સુરેશભાઈ સ્ટાર્ટિંગમાં મને મળ્યા અને એમને જણાવ્યું કે આ રીતે ડિજિટલ પ્રોગ્રામ કરવા માંગુ છું, જે કાર્ય શાસનનું જે કાર્ય અમે લોકોએ 20 વર્ષે કર્યું, એ કાર્ય આ ડિજિટલ યુગની અંદર 2 વર્ષ 5 વર્ષમાં પૂરું થઈ શકે। જૈન એકતાની એટલી બધી જરૂરિયાત છે કે જ્યારે શાસનના પ્રશ્નો લઈને અમે હાયર ઓથોરિટી પાસે જઈએ તો હાયર ઓથોરિટી પહેલા એ સવાલ કરે, દિલ્હીમાં એ સવાલ કરે કે તમે ક્યાંથી આવ્યા છો, દિગંબર છો, શ્વેતાંબર છો, ખરતલગત છો, તપાગત છો, કોણ છો? તો આપને શરમથી ઝૂકી જવું પડે। જે જૈન ધર્મને વિશ્વ ધર્મ બનવાને લાયક છે, આપને જૈનોને વારસાગત ધર્મ મળ્યો છે, સંસ્કાર મળ્યા છે, સુખ સાહેબી મળી છે, એટલે એની કોઈ કિંમત નથી। પરદેશની અંદર જૈન શાસનની કિંમત છે। જાપાનીઝ લોકો આજે ટ્રાન્સફોર્મ કરી રહ્યા છે જૈન ધર્મની અંદર। ટોક્યોની અંદર હજારો સાવક સાવિકાઓએ જૈન ધર્મ એડોપ્ટ કર્યો। તો એટલું તો ચોક્કસ છે ને કે મહાવીર ભગવાન જે કંઈ 2600-2700 વર્ષ પહેલા જે ભાગી ગયા, અને જે ભગવાન મહાવીર અને આજનું સાયન્સ, એ બેનો સમન્વય કરીએ ને તો આપને ખબર પડે કે આપનો ધર્મ ક્યાં છે અને આપણે ક્યાં લઈ જવા માંગે છે। પણ આપણે આળસુ થઈ ગયા છે। આપણે એક જ વસ્તુ સમજીએ છીએ કે આપણે આપણા હકથી મળેલું છે એટલે જે કંઈ કરો એ બરાબર કરીએ છીએ, અહમ પોસાય છે, પૈસા ખર્ચીએ છીએ। શાસનમાં એમ કહ્યું છે કે તમારી પાસે જે એક્સેસ હોય ને એ શાસનને સમર્પિત કરો। પછી એ તન હોય, મન હોય, ધન હોય, વેહિકલ હોય, જ્ઞાન હોય, જે કંઈ હોય એ શાસનને સમર્પિત કરો। આપણે શું કરીએ છીએ? આપણા મા બાપ માટે આપણે કેટલું કરે? મા બાપનું ઋણ ભૂલતા નથી, તો શાસનનું ઋણ કેમ ભૂલાય? શાસન આટલું આપ્યું છતાં કોઈ દિવસ શાસનને માટે આપણે વિચારતા નથી। હું વધારે ટાઈમ નહીં લઈશ કારણ કે મારી પાછળ ઘણા બોલવાવાળા છે, પણ એક જ એક એક્ઝામ્પલ આપું છું। રોબિન બાસ્કિટ
એ મારો પરમ મિત્ર થાય. 40 વર્ષ પહેલા, 35 થી 40 વર્ષ પહેલા હું દર મહિને અમેરિકા જાઉં. મારી અમેરિકામાં ઓફિસ હતી ડાયમંડની, અને લોસ એન્જલિસ મારે ટ્રાન્ઝિટમાં રહેવું પડે 2-3 કલાક. અને એક દિવસ એવું બન્યું કે એક સોફા પર અમે બંને બેઠેલા, અને મને કે હું રોબિન બાસ્કિન છું, તમે ઇન્ડિયાથી આવો છો? મેં કહું હાજી. કયા રિલિજિયસના છો? જૈન રિલિજિયસ છું. મને કે શું વાત કરો છો, ક્યાં રહો છો, તમારા ગુરુનું નામ શું? તમને મહાવીર ભગવાનના 27 ભોગ ખબર છે? મને ખબર નથી કે આટલામાંથી કેટલાને ખબર હશે, પણ મેં કીધું નહીં સાહેબ, મારી 2 બહેનોએ મારા જન્મ પહેલા દીક્ષા લીધી છે, પણ મને 27 ભોગ ખબર નથી. 1 કે 2 ભોગ ખબર હશે. મને કે મને 27 ભોગ કડકડાટ છે. મેં કહ્યું સાહેબ શું વાત કરો છો, તમે શું વાત કરો છો? મને કે હું ચિત્રભાનુ ગુરુદેવનો ડિવોટી છું વર્ષોથી. મારા આઈસ્ક્રીમમાં નોનવેજ નથી આવતું, અને કંપનીમાંથી $2500 રેમ્યુનેશન લઈ રહ્યો છું, અને 10 બાય 10ની રૂમમાં હું ને મારી વાઈફ સાથે અમે રહીએ છીએ, અને ન્યુયોર્કમાં ચિત્રભાનુની એક પણ સિવિલ મિસ કરતા નથી. સાંજના હું ચોવિયાર કરું છું, કંદમૂળ ખાતો નથી. અને મને કે મેં જૈન ધર્મ એડોપ્ટ કર્યો છે. પછી તો અમે પરમ મિત્ર બની ગયા, અને જ્યારે જ્યારે હું અમેરિકા જાઉં ત્યારે એ મને લોસ એન્જલિસ પર ટ્રાન્ઝિટમાં મળવા આવે. એકવાર એવું બન્યું કે એને એક બુક લખી, ન્યૂ ડાયટ ફોર અમેરિકા. અને ન્યૂ ડાયટ ફોર અમેરિકા નામની બુક લખ્યા પછી કેટલા અમેરિકનોને એને નોન વેજમાંથી વેજમાં ટ્રાન્સફર કર્યા. અને એ બુક ઇન્ડિયામાં મારી પાસે આવે, અને હિત રુચિ વિજય મારા સાહેબનો હું પરમ ભક્ત. એ બુક માટે મારે સાહેબજી સાથે વાત થઈ, અને સાહેબ કે આપણે આનું અનુવાદ ગુજરાતીમાં કરાવવું છે. તો મેં કીધું સાહેબ એની પરમિશન લેવી પડે. તો મને કે તમારે આટલો બધો સંબંધ છે, તો મેં કીધું એ આપી દેશે, પણ એટલીસ્ટ વિવેક ખાતર એકવાર આપણે પૂછવું જોઈએ. મેં પૂછ્યું, એને મને 48 કલાકમાં પરમિશન આપી દીધી કે તમે ગુજરાતી અનુવાદ કરો, મારે કોઈ રોયલ્ટી નહીં જોઈએ, કંઈ નહીં, અને આનો પ્રચાર કરો. ઇન્કમ ટેક્સ કમિશનર KC શાહ, કચરાલાલ સિંહ શાહ, તે જમાનામાં બહુ ફેમસ ઇન્કમ ટેક્સ કમિશનર હતા. બહુ શૂટ અને બહુ સિદ્ધાંતવાળી હતા. 37I ચાલતું હતું તે વખતે, અને 37I નો બધો પાવર એમની પાસે હતો. એ પણ હિત રુચિ વિજય માયા સાહેબના ડિવોટી, અને એમની પાસે આખું ગુજરાતી અનુવાદ કરાયું. અને એ બુક ગુજરાતીમાં બધે આખા ઇન્ડિયાની અંદર સાહેબે દરેક જ્ઞાનશાળામાં અને આચાર્ય ભગવંતોને મોકલી. કહેવાનો મતલબ એક જ છે કે એકતા એવી વસ્તુ છે કે આપણે ધારીએ ને તો આપણે જૈન ધર્મને વિશ્વ ધર્મ બનાવી શકીએ, પરંતુ આપણે આપણા હમમાંથી ઊંચા નથી આવતા, આપણે એકબીજાના તાંતિયા ખેંચવામાંથી ઊંચા નથી આવતા. પહેલા ઘણા મહિનાઓથી અમે લોકો આચાર્ય ભગવંતોની નિશ્રામાં જઈને 12 કલાક 15 કલાક ડિસ્કશન કરી, અને આ જૈન ધર્મના જે પ્રોબ્લેમો સવાર પડે ને આવે છે, જૂના પ્રોબ્લેમો પૂરા થતા નથી, એનો કોઈ ઉપચાર થતો નથી, અને નવા પ્રોબ્લેમોની શરૂઆત થઈ જાય છે. પછી એ મહાત્મામાં પ્રોબ્લેમ હોય કે આપના સંઘમાં હોય કે તીર્થરક્ષામાં હોય કે ક્યાંય પણ જૈન ધર્મમાં પ્રોબ્લેમ હોય. પછી દિગંબર પરિવાર સાથે હોય, શ્વેતાંબર પરિવાર સાથે હોય કે ખર્ચલગત સાથે હોય. પણ હું એમ કહું કે આપને કોઈ દિવસ એમ વિચાર કેમ નથી આવતો કે અમે મહાવીર ભગવાનના દીકરા છીએ, અમે સપૂત કોના છીએ, આપણા કપૂત છીએ કે સપૂત છે? પહેલા એ નક્કી કરો, અને એ નક્કી કર્યા પછી ડિસાઈડ કરો કે અમે મહાવીર ભગવાનના સપૂત છીએ, અને અમારે અમારા
પિતાને જે શોભે એ જ કાર્ય કરવું જોઈએ, બીજું કોઈ કાર્ય કરવું નહીં જોઈએ. શાસન માટે મરી ફીટવું જોઈએ. ત્યારબાદ આચાર્ય ભગવાનની સલાહ અનુસાર અમે 30-40 જણની ટીમ બનાવી કે જે ટીમ પોતાના બ્લડમાં, પોતાના શરીરમાં એક ટીપું બ્લડ હોય ને ત્યાં સુધી એ શાસનને કેમ તો કે શાસનને સમર્પિત થઈ જાય. અને એમાં ખાસ કરીને અમારા જૈન મહાસંગઠનના વીપી શાહ અને અહીંયા બિરાજમાન નીતિનભાઈ વોરા એમને અમને બહુ સપોર્ટ કર્યો અને એમને એમ કીધું કે બકુલભાઈ તમે અલગથી આપણે બનાવો, એમાં અમે પણ આવશું અને આ તીર્થ શાસનના જે કંઈ પ્રોબ્લેમો છે એ પ્રોબ્લેમ આપણે 30 જણા મળી અને સોલ્વ કરીએ. અને ત્યારબાદ અમે જૈન ઇન્ટરનેશનલ કાઉન્સિલની રચના કરી અને એ રચનાની સાથે ભારત સરકાર અમારી સાથે કનેક્ટેડ થશે. ભારત સરકારના ઉચ્ચ હોદ્દેદારોની સલાહથી આ સંસ્થા બનાવવામાં આવી છે, આ કાઉન્સિલ બનાવવામાં આવી છે. અને એમના તરફથી એમ કહેવામાં આવ્યું કે દરેક સ્ટેટની અંદર નોડલ ઓફિસરો અમે એપોઇન્ટ કરશું. તમારા શાસનના પ્રોબ્લેમ માટે તમારે દિલ્હી આવવાની જરૂર નથી અને એ નોડલ ઓફિસરનો ખર્ચો અમે બેર કરશું. અમે એટલે કોણ? સરકાર બેર કરશે. અને દિલ્હીમાં જે ઓફિસ ખુલશે એનો ખર્ચો અમારે મીન્સ કાઉન્સિલે બેર કરવાનો. ને અત્યારે કાઉન્સિલ ફોર્મ થવાની તૈયારીમાં છે, સાથે મોટી જગ્યા લઈ રહ્યા છે અને આ બધાના પુણ્યોદયથી અને એ રીતે અમે કામ આગળ વધારી રહ્યા છે. સાથે સાથે સુરેશભાઈને બી અમે અમારી એડવાઇઝરી બોર્ડમાં લઈ રહ્યા છીએ. એને ઘણું કામ કર્યું છે અને એનો બી ઉપયોગ શાસનમાં દરેક ડગલે ને પગલે લઈ શકીએ. અમે એમ કહીએ છીએ કે જેને બી જૈન ઇન્ટરનેશનલ કાઉન્સિલમાં જોઈન થવું હોય અને ખરેખર શાસનને માટે સમર્પિત હોય, અમને કોઈ પૈસાને માટે અમે કોઈને લેતા નથી, પણ અમે તો એક જ કહીએ કે શાસ્ત્રમાં જે કહ્યું છે કે જે કંઈ તમારી પાસે એક્સેસ છે એ શાસનને તમે આપો અને શાસનનું ગમે એટલું કરશું તો એ ઋણ ચૂકવવાનું નથી. માટે અમે દરેકને, હું જૈન ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર વતી હું દરેકને અપીલ કરું છું કે જેને બી સમર્પણ થવું હોય એ બધા અમારા એમાં આવી શકે છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આટલું કહીને હું વિરામ પામું છું. અમારા બીજા કલીગ ફાઉન્ડર મેમ્બર દીપેશભાઈ જૈન થોડી વારમાં પધારશે એટલે કાર્યક્રમ આપણે આગળ ચલાવીએ. ત્યારબાદ એ લોકો જૈન ઇન્ટરનેશનલ કાઉન્સિલ માટે 5 મિનિટ આપને માહિતી આપી દેશે. જય શ્રી भगवान महावीर के चरणों में कोटि से वंदना। सम्मानित मंच, भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर और अच्छे कार्य के लिए भाई श्री सूरज जी पूर्णिया ने आज हम सबको यहाँ एकत्रित किया है। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि आप सब एक बार जोरदार तालियों से सूरज जी का स्वागत करें। मैं जिन वक्ताओं ने जो बात कही उसको दोहराऊंगा नहीं, तो एक बात जरूर कहूंगा कि इस हॉल में जितने भी विराजमान हैं लगभग सभी व्यापारी हैं, व्यवसाय करने वाला आदमी है। और व्यापारी व्यापार करने के पहले ये सोचता है कि नफा किसमें है, मुनाफा किसमें है। बगैर मुनाफे का घाटे वाला काम अगर होगा वो कभी नहीं करेगा ये घाटे का काम मैं नहीं करूँगा। फिर भी हम लोग करने जब चलते हैं, जब जिस राह पर आगे बढ़ते हैं, उनको मालूम है इसमें हमारा घाटा है, फिर भी वो काम हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा कि एक पिताजी के 2 पुत्र थे और पिताजी इतने पैसे वाले थे कि उनके ज़माने में उनसे बड़ा पैसे वाला कोई नहीं था। और दोनों पुत्र बड़े लायक थे, समझदार थे, दोनों अच्छे पुत्र थे। पिताजी ने कहा अब आखिर काम तो किसी के जिम्मे देना पड़ेगा, कब तक मैं संभाल रहा रहूँगा, मेरी उम्र भी 60 के ऊपर चली गई। उन्होंने कहा किसके ऊपर भरोसा करूँ दोनों में से। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इन दोनों की परीक्षा ले लें। जो महानुभाव आपस में बातें कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि थोड़े टाइम के लिए सूर्य जी के कारण आप शांत हो जाए। तो पिताजी ने कहा इन दोनों की परीक्षा ले लेनी चाहिए
और परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएगा उसको काम की जिम्मेदारी सौंप दी। पिताजी ने 2 कमरे उनके थे, उन दोनों कमरों में काफी कूड़ा करकट भर दिया और उन दोनों कमरों के बाहर कुछ अपने झाड़ू की जो तिल्लियां होती है, गाछ की तिल्लियां, वो थोड़ी सुतली बाहर डाल दी और दोनों बेटों को बुला के बोला आपको एक टाइम दिया जा रहा है, इस टाइम के अंदर दोनों कमरे साफ करके देना। बड़ा बेटा सूट में था, टाई लगी हुई थी, आया बोला झाड़ू कहाँ पिताजी, झाड़ू नहीं अंदर, कैसे करूं क्या करूं? बोलो ढूंढो, तुम्हारा काम है ढूंढने का, मैंने तुमको कमरा साफ करने के लिए टाइम दिया, उसमें करके आना है। वो घूम फिर के इधर उधर घूम रहा है, कुछ घास पड़ी थी झाड़ू का साफ होता, वो लेके गया और करने का प्रयास करता है और वो बिखरता जाता है। जो कूड़ा था और ज्यादा कूड़ा हो गया, जो कचरा था और ज्यादा कचरा हो गया। दूसरा लड़का सूरज जी जैसे समझदार था, उसने कुछ घास उसमें से उठाई और उठाने के बाद में पास में सुतली पड़ी डोरी पड़ी हुई थी, और डोरी से उसको बांध दी और बांध के उसमें से झाड़ू निकाल दी, पूरा घर साफ कर दिया। पिताजी ने बोला टाइम पे काम हो गया? बोला हो गया, खोलो ताले खोलो। तो उससे कहा पिताजी मैं करूं किससे, यहाँ साफ करने का कुछ था ही नहीं। दूसरों को पूछा तुम्हारा? बोला हो गया, साफ है मेरा कमरा, दिखाओ। उसने वो कमरा दिखाया, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन था। वो कैसे हो गया भाई, आपको मालूम पड़ गया ना, उस झाड़ू की तीलियों को उसने बांध दिया। आज सुरेश जी पुनमिया ने हम सबको एकत्रित होने के लिए यहाँ बुलाया है। मेरा निवेदन है इनकी भावना को समझते हुए हमें इस विषय पे आगे बढ़ना चाहिए। मैं लगभग प्रशांत भाई मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, प्रशांत भाई को अच्छी तरह से मालूम है, सन 1972 से मैं भारत जन महामंडल से जुड़ा हुआ हूँ और भारत जन महामंडल से जुड़े हैं, उसमें कई वरिष्ठ अध्यक्ष आए हुए, कई बड़े बड़े अध्यक्ष आए, साहू श्रेयांश प्रसाद जी भी आए, दीपचंद गाड़ी जी भी आए, किशोर जी वर्धन भी आए, रमेश जी जैन दिगंबर समाज के भी आए, कई बड़े बड़े, और सबने प्रयास किया कि जैन एकता का काम किया जाए। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं कार्यकर्ता के नाते उनके साथ जाता था, क्योंकि फोटो आएगा मेरा भी, जो आज अभी लग रही थी ये फोटो किसके साथ में कौन खींचा है, फोटो आएगा करके मैं भी गया था। छगन भुजबल उसमें मेयर हुआ करते थे, और भाई जान समझ गए। छगन भुजबल के बंगले पे गए कि पर्यूषण के टाइम में कत्ल खाने बंद किए जाए, और कत्ल खाने बंद करने के लिए छगन भुजबल के पास में भारत जन महामंडल डेपुटेशन लेके गया और पूछा किस दिन करना चाहिए। तो भुजबल साहब ने मराठी में पूछा कवा करायची काय, तो बोले ये कर लो, एक बोला ये कर लो, एक बोला ये कर लो, बोला पहले एक हो जाओ फिर कर देंगे, जाओ यहाँ से, रवाना कर दिया उन्होंने। ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ, परंतु समय की सीमा है, मुझे भी कुछ समय अपनी बात करनी। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि एकता अगर हमारी हो गई तो विश्व में किसी की ताकत नहीं कि जैनों को कोई ठेस पहुंचा सके। आज किसी भी दृष्टि से आप देख लो, कहीं भी देख लो, कितनी भी संख्या से मत देखना, आप संख्या से देखोगे जैनों को तो एकदम न्यूनतम पाई जाएगी, परंतु अगर देखा जाए टैक्स पेयर में देखो जैन सबसे आगे, दान दाताओं में देखो जैन सबसे आगे, एजुकेशन के काम में देखो जैन सबसे आगे, मेडिकल के काम में देखो जैन सबसे आगे, परंतु हमारे कारण हम एक दूसरे से केकड़ा वृत्ति करते रहते हैं और उस केकड़ा वृत्ति के कारण हम हमेशा पीछे रह जाते। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, सुरेश भाई ने जो काम आगे बढ़ाया है उस काम में हम सब सहयोग करें और सहयोग की भावना से आगे बढ़े। मैं तेरापन समाज से हूँ और हमारे गुरुजी आचार्य श्री महासमण जी हैं, उन्होंने भी इस विषय को उठाया था। गुरुदेव तुलसी ने तो 16 साल तक शक्कर नहीं खाई कि जब तक जैन एकता की समस्या एक नहीं होगी तब तक मैं शक्कर नहीं खाऊंगा। आखिर वो महाप्राण कर गए, नहीं हुई। उसके बाद में आचार्य महासमण जी के पास में आया तो उन्होंने भी प्रयास किया, नहीं हुआ तो फिर उन्होंने डॉक्टर सी मुनि जी जो श्रवण संघ के आचार्य हैं उनसे बात करके कहा कि आप जिस दिन करोगे उस दिन हमारी तेरापंथियों की समस्या होगी और ये मैं 25 साल की गारंटी लिख के देता हूँ। उन्होंने 25 साल के लिए डॉक्टर सी मुनि को श्रवण संघ की जब समस्या होगी उस दिन की समस्या करने का उन्होंने तय कर लिया। तो मेरा तो एक ही निवेदन है, सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ विराजमान है, बड़े बड़े लोग विराजमान है, साधु भगवंतों से भी, आचार्य भगवंतों से भी हमें निवेदन करना चाहिए
ये काम आप भी इसमें आगे हो जाओ, परंतु उसके पहले हमें झाड़ू की तरह एक दृष्टि में बंधना होगा, तो जाके हम कर पाएंगे। मैं भाई सुरेश जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये प्रयास किया और वो कर रहे हैं। मुझे भी 2-3 बार इन्होंने फ़ोन किया था, किशन जी मिलना है, तो मैं भी क्या आचार्य जी के काम से कहीं बाहर ही था, नहीं मिल पाया। और आज भी ऐसे सहयोग मिला कि नहीं मिलने का हो रहा था, परंतु इनके आग्रह को छोड़ नहीं सका। मैंने कहा एक बार जाना चाहिए अपने को। मैं आया, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों के दर्शन हो गए, सबसे मिलना हो गया। पुनः जय जिनेंद्र, जय हिंद। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि एक झाड़ू की तरह एक रस्सी में बन जाओ आप, तो जाके आप ये जैन एकता की बात कर पाएंगे। नहीं तो ये मेरा स्वागत नहीं हुआ। सूरज जी ने बुला लिया, मुझे तो माइक पे आगे बिठाया नहीं, 4 आदमी दूसरों को बिठा था, मैं क्या उनसे कोई कम हूँ? तो हो गई अपनी एकता। जय जिनेंद्र। हम सब सहयोग करें और सहयोग की भावना से आगे बढ़े। मैं तेरापन समाज से हूँ और हमारे गुरुजी आचार्य श्री महासमण जी हैं, उन्होंने भी इस विषय को उठाया था। गुरुदेव तुलसी ने तो 16 साल तक शक्कर ने कही कि जब तक जैन एकता की समस्या एक नहीं होगी तब तक मैं शक्कर नहीं कहूँगा। आखिर वो महाप्राण कर गए, नहीं हुई। उसके बाद मैं आचार्य महासमण जी के पास में आया तो उन्होंने भी प्रयास किया, नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने डॉक्टर सी मुनि जी जो श्रवण संघ के आचार्य हैं उनसे बात करके कहा कि आप जिस दिन करोगे उस दिन हमारी तेरापंथियों की समस्या होगी, और ये मैं 25 साल की गारंटी लिख के देता हूँ। उन्होंने 25 साल के लिए डॉक्टर सी मुनि को श्रवण संघ की जब समस्या होगी उस दिन की समस्या करने का उन्होंने तय कर लिया। तो मेरा तो एक ही निवेदन है, सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ विराजमान है, बड़े बड़े लोग विराजमान है, साधु भगवंतों से भी, आचार्य भगवंतों से भी हमें निवेदन करना चाहिए ये काम आप भी इसमें आगे हो जाओ, परंतु उसके पहले हमें झाड़ू की तरह एक दृष्टि में बंधना होगा, तो जाके हम कर पाएंगे। मैं भाई सुरेश जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये प्रयास किया और वो कर रहे हैं। मुझे भी 2-3 बार इन्होंने फ़ोन किया था, किशन जी मिलना है, तो मैं भी क्या आचार्य जी के काम से कहीं बाहर ही था, नहीं मिल पाया। और आज भी ऐसे सहयोग मिला कि नहीं मिलने का हो रहा था, परंतु इनके आग्रह को छोड़ नहीं सका। मैंने कहा एक बार जाना चाहिए अपने को। मैं आया, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों के दर्शन हो गए, सबसे मिलना हो गया। पुनः जय जिनेंद्र, जय हिंद। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि एक झाड़ू की तरह एक रस्सी में बन जाओ आप, तो जाके आप ये जैन एकता की बात कर पाएंगे। नहीं तो ये मेरा स्वागत नहीं हुआ। सूरज जी ने बुला लिया, मुझे तो माइक पे आगे बिठाया नहीं, 4 आदमी दूसरों को बिठा था, मैं क्या उनसे कोई कम हूँ? तो हो गई अपनी एकता। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भगवान आदेश्वर दादा से लेके भगवान महावीर स्वामी जी को प्रणाम। और जिनके दिमाग में बार बार ऐसी सोच आती रहती है वैसे पवित्र आत्माओं को भी प्रणाम। और आज के हमारे दूल्हे राजा सुरेश जी पूर्णिमा जैन जी को भी प्रणाम, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा है। मेरी उम्र है 63 साल की उम्र है। 18 साल से मैं सोशल में हूँ। आप भारत जैन महामंडल का नाम लो, भारतीय जैन संगठन का नाम लो, भारत जैन महामंडल का नाम लो या जीतो का नाम लो, सब लोगों ने समय समय पर जैनों की एकता का प्रयास किया है और करते रहेंगे। सुरेश भाई, 1 मिनट आपके लिए बताऊंगा। सुरेश भाई का हमारा वो भी जीतो के चीफ पैटर्न है, मैं भी जीतो का चीफ पैटर्न हूँ। अभी हमारी सिर्फ 3 या 4 महीने पहले जियो सेंटर में हमारी पहचान हुई। इन्होंने जिसो का ओपनिंग किया है, वो मुझे मालूम था, पहचान हुई। मेरे बाजू में बैठे थे, बोले किशोर जी मुझे एकता से प्यार हुआ है। मैं बोला एकता से सबको प्यार है, क्योंकि जैन समाज में अगर आप साधु संतों से बात करेंगे, अच्छे श्रावकों से बात करेंगे, तो आपको बातों में ऐसा घुमा देंगे तो आपको थोड़ी देर लगेगा एकता है, और हॉल से जैसे बाहर जाएंगे वो एकता किधर जाती है अपने को मालूम नहीं पड़ता है। तो मैं बोला सुरेश जी आप बहुत पवित्र आत्मा हो, और एक युवा जिसके पास पैसा आ जाता है, धर्म का काम करता है, वो आजू बाजू देखता है कि यार मेरे जैन समाज, मेरा सब जगह जैन समाज है। जैसे बताया पॉलिटिक्स में है, बिजनेस में है, हर बड़ा लीडर रहेगा उसका सेकंड पर्सन जो रहेगा वो जैन ही रहेगा। लेकिन जहां एकता की बात आती है, जब हमारा कोई काम पड़ता है, तब हम लोग एक नहीं दिखते हैं। वैसे सुरेश भाई के माइंड में थॉट आया, फिर मैं उनको बताया सुरेश जी ये थॉट बहुत पवित्र है। फिर उनको पूछा, बोले सुरेश जी आपकी उम्र कितनी? हंसने लगे वो।
ऐसा क्यों पूछ रहे किशोर जी? मैं बोला आप अभी लग रहे हैं मुझे 55 या 52 और औसत अपनी उम्र होती है 80 की। भला ही 100 साल जिए अपन, 25 साल है आपके पास। 25 साल इंटू 365, आपके पास मात्र कुछ 7-8 हजार दिन बाकी है जीवन के। तो ये 7-8 हजार दिन आपको कहाँ लगाने हैं इसके बारे में सोचो। तो फिर उनको बोला डिजिटल युग है, पहले पॉसिबल नहीं था। अभी हम जैन जनगणना, इंटरनल जनगणना, क्योंकि भारत सरकार के हिसाब से तो अपन सिर्फ 45 लाएंगे, लेकिन एक्चुअल अगर आप जाएंगे ना तो हम लोग 2 करोड़ से कम नहीं है। आपको बहुत सारी जगह ऐसी मिलेगी जिनका अपन रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो 2 करोड़ है। तो आप ऐसा आप करो, आप भी है, सब संस्थाएं मिलकर अपन ये बात अपन आगे लेके जाएंगे कि डिजिटल माध्यम से, और ये भी छोटा काम नहीं है, भले ही आप संघों से चालू करो, धीरे 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 शुरुआत होगी। और जब हमें डेटा सबका मिल जाएगा तो हमको मालूम होगा कि हम क्या है। अभी भी हमको पूरा मालूम नहीं है। आप इतने भी हो, आप 50 संस्थाओं से जुड़े हो तो भी आप कोई एक नई शादी में जाएंगे, फ्लाइट पे जाएंगे, आपको एक नया जैन भाई मिलेगा कि जिसके आपकी पहचान नहीं है। इसके वजह से हम अगर ये डेटा अगर इकट्ठा कर पाएंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। रही बात पॉलिटिक्स की, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। जो जो सरकार समय समय पे आती है वो जैनों का यूज लेती है, और हमारा जैसे भाई ने बताया हमारा काम व्यापार का है। व्यापारी आदमी जो सरकार सीट पे रहेगी उसके पीछे तो उसको जाना ही पड़ेगा, वो एक अलग सब्जेक्ट। व्यापारी आदमी अपन, अपने को कोई भी सरकार रहेगा, लेकिन ये गलत फहमी में मत रहना। आप जब तक अंदर से एक नहीं होंगे और अपना हक नहीं मांगेंगे, और मैं बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, मैं अभी इसराइल और इराक और अमेरिका युद्ध चल रहा है। कभी कभी बहुत बड़ा भाई मेरे बहुत बड़े आदमी से मेरी पहचान है, मेरा सब कुछ हो जाएगा। इसराइल ने ऐसा सोचा मेरी अमेरिका से पहचान है, मैं 1 मिनट में इराक को खा जाऊंगा। ये गलत फहमी में मत रहना। हम देख रहे हैं, मैं ये नहीं पूछूंगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आज 20 दिन हो गए युद्ध चालू है, और जैनों ने ये ख्याल में रखना चाहिए, कोई भी बड़ा भाई उनका ख्याल नहीं रखेगा। आप पे बीतेगी ना, आप पे बीतेगी तो आपको ही आपका ख्याल रखना पड़ेगा। और अभी हर आदमी मैं देख रहा हूँ शेयर मार्केट में इधर उधर इतना पैसा कमाने में लगा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है मेरा बच्चा क्या कर रहा है। और हम लोग इधर जैन एकता की बात कर रहे हैं, उसको ही डोंट नो व्हाट हिज सन इज डूइंग। तो हमें एक करके ये करना होगा, तो हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। और हमारी जहाँ तक हमारे पवित्र आत्मा साधु संतों की बात है तो मैं बहुत देरी से कह पाऊंगा, लेकिन नहीं, ये फैक्ट है। और इसके लिए आप देखो लास्ट तक एक भी आपको 40 साल वाला एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको मालूम है बच्चों को, साला मेरा बाप तो, मेरा भाई, मेरा अंकल, इसके पास पैसा आ गया, अभी घर पे कुछ काम नहीं है तो थोड़ा किधर तो भी सोशल में जाता है, कुछ तो भी करता है। बोले भैया हमारी इमेज हो गई है। मेरी लड़की जो है शी इज ए डीएम कार्डियोलॉजिस्ट सर, नानावटी हॉस्पिटल में है। बोले आप कभी भारत जैन महामंडल में जाते हो, कभी जीतो में जाते हो, पापा आपको करना क्या है लाइफ में, वो भी मुझे पूछने लग गई। तो चलो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सबका पवित्र भाव है, हम अंदर से एक हो जाओ। क्योंकि हमारे इतने भवन, इतने मंदिर बन रहे हैं, लेकिन ऐसे याद देखा ना कितने भवन, दुबई इतना बड़ा खड़ा हुआ, 4 भवन दुबई को खा सकते हैं। तो जैनों ने मैं 50 भवन बना लिए, 100 मंदिर बना लिए, इसके लिए मैं जिंदा रह जाऊंगा, यह मत सोचो। मेरे को कोई टीका नहीं करनी है, मैं कोई गुरु भगवंतों को मैं कोई कम नहीं समझ रहा हूं, लेकिन अंदर से अंदर हम एक हो जाओ और डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा डेटा की तरफ बढ़ो। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी फॉर्म इस पे मोबाइल पे नहीं है, तो उसका अपन प्रैक्टिकल उनके घर पे भरवा सकते हैं। और सब संगठनों से मैं भी सुरेश भाई मैं भी बात कर रहा हूं, जिसों का अपनी बात हुई थी, मैं जीतो वालों से बात किया, भारत जैन से बात किया, और तेरापन समाज ने तो अपना ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब छोटा संप्रदाय तो उन्होंने किया हुआ है। तो हम लोग धीरे 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 धीरे, क्योंकि आने वाले 5-10 साल में अगर हम डिजिटल हो जाएंगे तो हम लोग बच पाएंगे। अदरवाइज अगर आप बोलते हो मैंने 100 करोड़ कमा लिया, 500 करोड़ कमा लिया, 1000 करोड़ कमा लिया, मेरा जू में बंगला है, 15 साल बाद 50-100 बच्चे रोड पे आए
तो आपको बंगले में से किधर भागना पड़ेगा मालूम नहीं, दुबई से कैसे अरबपति भाग रहे हैं आप देख रहे हो ना। तो जय जिनेंद्र जय महावीर, आप मतलब बस डिजिटल प्लेटफॉर्म से और कुछ भी करो, अंदर एक हो जाओ। एक जैन आदमी ने दूसरे जैन आदमी के बारे में गलत बोलना छोड़ दो, वही सही श्रद्धांजलि होगी भगवान महावीर के लिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, जैनों का दुश्मन जैन ही है, तो डोंट डू दैट कभी भी। भाई मेरा जैन भाई अभी वो बोले क्या हुआ, उसने तो लफड़ा किया था, पैसे कैसे आ गए उसके पास इतने। अरे आए ना भाई, आए ना, तू डोनेशन ले, लाभ ले, उसके पास किधर से आए मत सोच, यू नो आए होंगे उसके पास, आए होंगे। डोंट थिंक, यू एंजॉय द थिंग्स। उसको भी बेचारे को उसने रातों की नींद हराम की होगी, 16-16 घंटा काम किया होगा, इसके लिए उसके पास पैसा आया। तो प्लीज अंदर से एक हो जाओ, और आपका छोटा भाई बड़ा भाई आप जब भी पुकारेंगे, ये जब तक ये शरीर में जान है तब तक मैं सोचूंगा जैन। और आप, मैं जैन नहीं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैन आदमी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। मैं जब जैन बोलता हूं तो मैं हिंदू भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं क्रिश्चियन भी हूं, और मैं ईसाई भी हूं, क्योंकि हमारे भगवान महावीर स्वामी जी ने जो अनेक कर्म का सिद्धांत दिया है, उधर कोई धर्म को थारा नहीं है। और हम जब धार्मिक हो जाते हैं तो छोटे हो जाते हैं। जय जिनेंद्र जय महावीर जय जिसो। लेकिन नहीं, ये फैक्ट है, और इसके लिए आप देखो लास्ट तक एक भी आपको 40 साल वाला एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको मालूम है बच्चों को, साला मेरा बाप तो, मेरा भाई, मेरा अंकल, इसके पास पैसा आ गया, अभी घर पे कुछ काम नहीं है तो थोड़ा किधर तो भी सोशल में जाता है, कुछ तो भी करता है। अरे भैया हमारी इमेज हो गई है। मेरी लड़की जो है, शी इज ए डीएम कार्डियोलॉजिस्ट सर, नानावटी हॉस्पिटल में है। बोले आप कभी भारत जैन महामंडल में जाते हो, कभी जीतो में जाते हो, पापा आपको करना क्या है लाइफ में, वो भी मुझे पूछने लग गई। तो चलो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सबका पवित्र भाव है, हम अंदर से एक हो जाओ, क्योंकि हमारे इतने भवन, इतने मंदिर बन रहे हैं, लेकिन ऐसे ही आप देखा ना कितने भवन, दुबई इतना बड़ा खड़ा हुआ, 4 भवन दुबई को खा सकते हैं। तो जैनों ने मैं 50 भवन बना लिए, 100 मंदिर बना लिए, इसके लिए मैं जिंदा रह जाऊंगा, ये मत सोचो। मेरे को कोई टीका नहीं करनी है, मैं कोई गुरु भगवंतों को मैं कोई कम नहीं समझ रहा हूं, लेकिन अंदर से अंदर हम एक हो जाओ और डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा डेटा की तरफ बढ़ो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी फॉर्म इसमें मोबाइल पे नहीं है, तो उसका अपन प्रैक्टिकल उनके घर पे भरवा सकते हैं। और सब संगठनों से मैं भी सुरेश भाई, मैं भी बात कर रहा हूँ, जिसो का अपनी बात हुई थी, मैं जीतो वालों से बात किया, भारत जैन से बात किया, और तेरापन समाज ने तो अपना ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब छोटा संप्रदाय तो उन्होंने किया हुआ है। तो हम लोग धीरे 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 धीरे, क्योंकि आने वाले 5-10 साल में अगर हम डिजिटल हो जाएंगे तो हम लोग बच पाएंगे। अदरवाइज अगर आप बोलते हो मैंने 100 करोड़ कमा लिया, 500 करोड़ कमा लिया, 1000 करोड़ कमा लिया, मेरा जू में बंगला है, 15 साल बाद 50-100 बच्चे रोड पे आए, तो आपको बंगले में से किधर भागना पड़ेगा मालूम नहीं, दुबई से कैसे अरबपति भाग रहे हैं आप देख रहे हो ना। तो जय जिनेंद्र जय महावीर, आप मतलब बस डिजिटल प्लेटफॉर्म से और कुछ भी करो, अंदर एक हो जाओ। एक जैन आदमी ने दूसरे जैन आदमी के बारे में गलत बोलना छोड़ दो, वही सही श्रद्धांजलि होगी भगवान महावीर के लिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, जैनों का दुश्मन जैन ही है, तो डोंट डू दैट कभी भी। भाई मेरा जैन भाई अभी वो बोले क्या हुआ, उसने तो लफड़ा किया था, पैसे कैसे आ गए उसके पास इतने। अरे आए ना भाई, आए ना, तू डोनेशन ले, लाभ ले, उसके पास किधर से आए मत सोच, यू नो आए होंगे उसके पास, आए होंगे। डोंट थिंक, यू एंजॉय द थिंग्स। उसको भी बेचारे को उसने रातों की नींद हराम की होगी, 16-16 घंटा काम किया होगा, इसके लिए उसके पास पैसा आया। तो प्लीज अंदर से एक हो जाओ, और आपका छोटा भाई बड़ा भाई आप जब भी पुकारेंगे, ये जब तक ये शरीर में जान है तब तक मैं सोचूंगा जैन। और आप, मैं जैन नहीं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैन आदमी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। मैं जब जैन बोलता हूं तो मैं हिंदू भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं क्रिश्चियन भी हूं, और मैं ईसाई भी हूं, क्योंकि हमारे भगवान महावीर स्वामी जी ने जो अनेक कर्म का सिद्धांत दिया है,
उधर कोई धर्म को थारा नहीं है। और हम जब धार्मिक हो जाते हैं तो छोटे हो जाते हैं। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय जिसो। सुरेश जी पुनमिया, मैं आपका आभारी हूँ। मैंने कई बार मंच ग्रहण किए हैं, पर जैन समाज के सामने ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ। आई एम ऑलवेज प्राउड। हमें बहुत गर्व है हमारे परिवार में भी कि हम जैन हैं। कभी मौका ज़्यादा लगा नहीं है कि समाज के लिए कुछ ज़्यादा कर पाएँ, पर बचपन से देखते आ रहा हूँ कि एकता के फायदे क्या हैं। एकदम छोटा था, देखता हूँ मटकी बांध रहे हैं बॉम्बे में। मैं सोचता था ये मटकी कौन तोड़ेगा। और जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के कंधे पे पैर रख के एक दूसरे के सहारे कितनी भी ऊंचाई है वो मटकी को तोड़ लेते हैं। तो ये सबसे पहला लेसन देखा, और ये मुंबई में ही है, दूसरी जगह कहीं देखा नहीं। सुरेश जी, दूसरा परिचय मिला हमारी अपनी लाइफ में जब हमारे परिवार पे इतनी विपदा आई। हम 4 भाई हैं। हर्षद भाई, उनकी अचानक मृत्यु हो गई और मैं घर का मुखिया हो गया। तो हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशंस कभी गलत नहीं करते, इंडिविजुअली गलत करते हैं। तो सीबीआई ने बोला, अच्छा आप जैन हो, आप गुजराती हो, आपको तो हम मसल के रखेंगे। मतलब हमें डरपोक कौम के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाली, मैं तो स्टैटिस्टिक्स देख के हैरान हूँ कि दुनिया में तय करने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी जो रेस है जो सबसे ज़्यादा समाज के लिए प्रोडक्टिव है। तो कभी जूस का नाम आता है, कभी सिंधी, कभी मारवाड़ी, कभी गुजराती, बट कभी पारसी का भी नाम आता है। बट जब इनके आंकड़े मैं देखता हूँ जैन के, कि अगर वो 1% है और 23% कंट्री का टैक्स वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो गर्व तो क्या कहूँ मैं, तो हम तो 6 फुट ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। तो ये है जैन समाज की क्षमता की बात। अब सब अपने आप में कुछ न कुछ समाज में योगदान करते हैं, बट अब इंडिया एक चीज़ और के लिए जाना जाता है कि गरीबों का देश, लेकिन डिजिटाइज देश। तो सुरेश जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा कि हमने 25 साल में वो नहीं किया, तो मुझे यकीन है कि डिजिटाइज इंडिया और डिजिटाइज जैन कम्युनिटी अगर कुछ डिजिटल माध्यम से हासिल करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई सालों की ज़रूरत है। और ये तो ऐसा सुंदर प्रयास है कि हम आपस में एक दूसरे को बगैर मिले, बगैर समझे, बगैर पहचाने हम एक हो जाएंगे। और रातों रात भी हो सकता है, कुछ महीनों में, कुछ सालों में हो जाएगा। तो आपको मैं अभी से धन्यवाद करता हूँ। तो ये जो एकता की बात है, हमने आज 34 साल से तकलीफ देख रहे हैं, और उसके पीछे एक ही वजह है कि आज मेरे घर में रोज स्माइल है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसका सूत्र हमें समझ में आ गया है, वो है हमारी एकता। हम वो महीना दिन कभी जाता ही नहीं है जब हम एक दूसरे से परिवार में जुड़े नहीं रहते। तो जब परिवार इतनी बड़ी मुसीबतों को झेल सकता है एक एकता के सहारे, तो समाज जब अगर प्रोग्रेसिव कामों के लिए एक हो जाएंगे, तो मुझे तो पता ही नहीं है, मेरा अपना तो गुरु मंत्र यही है कि 1 और 1 कभी 11 होता ही नहीं है। 1 और 1 111 भी नहीं होता है। 1 और 1 1111 कुछ भी हो सकता है। जब समाज एक साथ हो जाए और उसकी कोई क्षमता का कोई फिर किसी को बॉटम देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो अपने अनुभव से इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत सुंदर प्रयास है, और जैन समाज इतना प्रोग्रेसिव है, इतना बड़े दिल का है, और समाज में इतना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं तो यही कामना करूँगा और सबसे निवेदन करूँगा
कि इनके इतने अच्छे ख्याल को हम सारा भूल जाएं। मुझे तो पर्सनली पता ही नहीं है कि ये तेरहपंथी, ये मारवाड़ी, गुजराती, हम तो एक सूत्र से बंधे हुए हैं। मैं तो बचपन से जब मैं पार्टिसिपेट करता था, हमारे रतिलाल जी महाराज, गिरीश मुनि जी और कईयों को, और हमारा छोटे भाई हैं डॉक्टर, वो भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, डॉक्टर हितेश 2 अस्पताल चला रहे हैं। हमारे घर में हमने 2 लोगों को नियुक्ति कर दिया है कि हम तो फंसे पड़े हुए हैं, आप कम से कम परिवार के बिहाव पर समाज के लिए जो कर सकते हो करो। डॉक्टर हितेश मेहता और प्रतिभा मेहता। और इससे ज़्यादा मैं यही नहीं कहूँगा, बट अब हमारे बादल मुसीबत के छट रहे हैं। सुरेश जी, हमको कभी भी याद करिए। मैं 71 का हूँ, भगवान ने चाहा मैं जो योगदान कर पाऊँगा, मैं आज आपके साथ मैं प्रण लेता हूँ कि आई एम ऑलवेज देयर, माई फैमिली विल ऑलवेज बी देयर। और आह्वान करता हूँ मैं कि हम एक हो जाएं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एक धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, आपके प्रेम का और आपके विशेष ये कार्यक्रम का। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा सादर प्रणाम। विशेष सुरेश जी पुनमिया एक छोटी सी चिंगारी वट की तरह महान ज्वाला बन के शासन प्रभावना की और बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकती है, अगर अपन सबका साथ रहा तो। ये बात तय है, यूनिटी के बगैर कुछ कभी भी कोई सहयोग हो नहीं सकता। और अगर सभी संप्रदाय एक साथ एक मंच पर इसी तरह बार बार मिलने लगे ना, तो सभी गुरु भगवंतों की जो विचारधारा है ना, उसमें भी बहुत बड़ा चेंज अपने आप आने लगेगा। मैंने एक झलक देखी थी, उसकी एक झलक मैंने विले पार्ला में महसूस की। हमारी संघ की ऑफिस में हम बैठे थे, एकाएक समाचार आया कि दिगंबर समाज के मंदिर के ऊपर कुछ आफत आई है और पुलिस ने बलजबरी से उस पर एक्शन लेना शुरू किया है। सामान बाहर फेंक रहे हैं, औरतों का वीडियो निकलने लगा, पुलिस किस तरह से निर्दय से काम कर रही है। तो हम 15-20 मिनट तक सभी ट्रस्ट मंडल, मैं, मयूर भाई, भरत भाई सब बता रहे हैं विलेपार्ला से यहाँ, तो सब चर्चा करने लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर बेचारा जाने दो, अपना तो नहीं है, दिगंबरों का है। तो ये मंथन चलने लगा, दिगंबर श्वेतांबर। आखिर भगवान महावीर जरूर याद आए, बोला दिगंबर हो या श्वेतांबर, भगवान तो अपने है ना, इनको कोई आँच नहीं आनी चाहिए कोई संजोग में। और वो चिंगारी बड़ा स्वरूप लेकर खड़ी हुई और इमीडिएटली बहुत बड़ी सभा उसी दिन रात को विलेपार्ला संघ के उपाश्रय में पूरे जैन समाज की एक आह्वान करके जाहिर किया गया। और उस सभा में उस दिन रात को लगभग 1000 पब्लिक इकट्ठी हुई और उन्होंने अपने अपने विचार पेश किए। उसमें मंगल जी, प्रभात जी, लोढ़ा जी का भी आना हुआ और उन्होंने भी अपनी बात रखी कि क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो। और उसके दूसरे दिन उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ हूँ और आज उनको भी यहाँ इस एकता के मंच पर याद करना बहुत जरूरी है। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, दूसरे दिन तीसरे दिन उसका सभा का आयोजन हुआ और एक विशाल आयोजन होते हुए 25,000 जैन, श्वेतांबर हो या दिगंबर, तेरापंथी हो, जो भी समाज हो, सभी इकट्ठे एक साथ में अंधेरी के पुलिस उसके म्युनिसिपल ऑफिस में गए और उनको शरणागत होना पड़ा। और आज एक सुखद निर्णय, उत्तम निर्णय हुआ। तो ये एक अपनी सभी की एकता में काम करती है। हुआ ऐसा, गुरु भगवंत दिगंबर समाज के साधु भगवंत भी वहां विराजमान, उनका भी आना हुआ, हमारा भी आना। सूर्य श्वेतांबर मुनि वहां पर विराजमान थे और हमने श्वेतांबर सब गुरु भगवंतों को बताया नहीं कि दिगंबर गुरु भगवंत भी पधार रहे हैं। और ऐसी तरह एक मंच पर एक का एक व्यवस्था की गई
जहां पर कि दिगंबर और श्वेतांबर मुनि एक साथ, मुझे लगता है लास्ट 25 साल में पहला प्रसंग बना होगा, और उसका वीडियो पूरे भारत भर में जरूर वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद मैंने देखे कितने वीडियो जहां पर कि दिगंबर श्वेतांबर मुनि एक साथ में बहुत से मंच में साझा किए गए, तो उसकी रूपरेखा एक झलक के कारण हुई। उसके बाद एक समाचार ऐसा भी आया कि विल्ले पार्ला के द्वारा जैन मंदिर के ऊपर जो कार्यक्रम के लिए श्वेतांबर समाज ने सहयोग देकर जो सहयोग दिया, उसकी झलक की झनकारा सूरत, अहमदाबाद में दिगंबर समाज, श्वेतांबर समाज अपनी तीर्थकों के जितने भी डिस्प्यूट है उसके चर्चा करने के लिए भी मीटिंगें करने की एक सुंदर आयोजन के ऊपर चर्चा करने लगे। एक पाया तो निकला। इस तरह से अगर ये आयोजन होंगे तो अपने बहुत जो विवाद के बात है, जहां पर कि ये मेरा है, 3 घंटे मेरा, 3 घंटे के बाद मेरा, यहाँ पर आप नहीं पूजा कर सकते या हम करेंगे, तो ये जो जैनों के अंदर ये जो बातें आ रही है उसके कारण से नुकसान अपन जितने बैठे उनका किसी का नहीं है। अपने पीछे जो पीढ़ी है ना, उनको जैन एक चाहिए, ना श्वेतांबर चाहिए, ना दिगंबर चाहिए, ना तेरापंथी चाहिए, ना अचलगत चाहिए, ना स्थानकवासी चाहिए, किसी को कोई चाहिए नहीं, जैन मात्र चाहिए। अपनी एकता एक होगी। आज अपने युवा का जो मंच है ना, शादियों का प्रचलन हो रहा है, अभी किस तरह से कोई व्यवहार चलने लगा है। अपने जैनों की लड़कियां कहाँ कहाँ शादियां कर रही है, अपने बच्चे कहाँ से कहाँ शादियां कर रहे हैं। अपने सभी मंच एक नहीं होने के कारण, एक तो अपना समाज छोटा, उसमें भी इतने पंथ, उसमें भी इतनी विचारधारा, तो ये फ्रीडम बाहर निकलने लगा है। अगर सब अपन एक बनते हैं और बनेंगे, और मुझे विश्वास है, और जो प्रयोजन इन्होंने किया है ये जरूर कार्य करेगा। और मैं तो बहुत सराह रही, मुझे तो आनंद हुआ। मुझे तो कल ही फोन किया इन्होंने कि आपको यहाँ पधारना है। मैंने बोला ऐसा सुंदर मौका कब मिलेगा। मेरे मन की बात ही इन्होंने पकड़ ली, तो मैंने तो सहर्ष स्वीकार किया। मैं आगे की ये बात करते करते मुझे लगता है कि सभी जैनों को एक होकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा बनाना चाहिए, सभी संप्रदाय को। उसकी रूपरेखा अपने को बनानी, कोई साधु भगवंतों को नहीं। क्योंकि अपन पूछने जाएंगे तो अपन बोलेंगे तमें तो समझदार छो, तमें तो आपना छो, तमें तो मारा चेला छो, तमें आવું करो। એટલે મને લાગે છે कोई गुरु भगवान से मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊं, बाद में मैं चुप रह जाऊं, यही हो रहा है। सभी गुरु भगवान अपने अपने चेले बना रहे हैं, कोई अपने शिष्य बना रहा है। ये प्रश्न बहुत निकट है। आ तमें मारा, तमें आ गचना, तमें आमाना, तमें वल्लभ टोलीना, तमें आमा, तो ऐसे तो कब कहाँ होने वाला है। आने वाले पीढ़ी के लिए तो बहुत दुर्दशा होने वाली है। आप अभी कहीं पर भी कोई भी आयोजन करो, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करो। जैसे कि हमारे यहाँ पर विल्ले पार्ला में हम सभी चारों संप्रदाय एक होकर सभी महावीर जन्म कल्याण का जो वरघोड़ा है ना 31 तारीख का, उसका भव्य आयोजन करते जा रहे हैं। हमने ये प्रयोजन लास्ट 2 साल से शुरू किया है और पूरा संप्रदाय एक साथ पार्ला के राजमार्ग पर एक साथ चलता है और भगवान महावीर के शिष्य इस तरह से बात करते हुए पूरा करते हैं। हम देखो, बार बार मैंने सुनी बात, कोई भी काम अपन कहाँ पर भी जाते हैं राजनीति में या कोई गवर्नमेंट स्टेज पर, तो हम जब बात करते हैं कि हमको ये व्यवस्था चाहिए, इस तरह की व्यवस्था चाहिए, तो ये पूछते जरूर है आपका कौन सा दिन है। आप जैन हो, लेकिन जैनों में एकता कहाँ है? आपके अलग अलग दिन है। आप बोलते हो मेरी महावीर जयंती 31 को, कोई बोलता है मेरी 1 तारीख को, तो ये 2-2 दिन तो छुट्टी हो नहीं सकती। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी जो रूपरेखा है, जैसे कॉमन है जहां पर कि हिंदू संस्कृति हो या कोई भी संस्कृति हो या किसी के सामने जाना हो, तहाँ उस लेवल पर तो हम सब जैन एक होके जाए। और रही बात अपने घर में जिस तरह से जो प्रणालिका करते हो, वहां किसी को सभी को छूट है। तो ऐसा एक विचारधारा के साथ कोई आयोजन किया जाए या समझ की जाए, तो उसके द्वारा, जैसे नितिन भाई बैठे यहाँ, उनके प्रयत्न तो बहुत उन्होंने किए हैं, लेकिन इनके और हमारे कितने गुरु भगवंतों से लंबी लंबी चर्चा होती है, कितने समझा पाते, कितने नहीं समझा पाते, एक विकट प्रश्न है। फिर भी प्रयत्न से पीछे हटना नहीं चाहिए। ये कार्य में वापस सुरेश जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने ये आयोजन किया। इसके साथ
ये प्रयोजन इसी तरह करते रहे और हम इनके साथ जब भी ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे। बिल्ले पार्ला संघ आपके साथ पूरी तरह समर्पित होके इस कार्य को आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास। सादर जय जिनेन्द्र सबको। मैं हैदराबाद से हूँ, तेलंगाना से, भाग्यनगर हैदराबाद। मैं तेलंगाना में जितने भी प्राचीन मंदिर, प्राचीन मूर्तियाँ 2.5 साल लगे हुए हैं, पूरा घूम के उसका हिस्ट्री के साथ में हर स्टेट में बनाना चाहता हूँ। एक स्टेट का तो कंप्लीट हो गया, अभी 20-21 तारीख को जो भी नेक्स्ट मंथ में इसका सीएम साहब से रिलीज करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सब मिल के हर स्टेट के अंदर अपना जैन का तीर्थ कितने हैं। अभी मैं तेलंगाना के अंदर गवर्नमेंट से सर्टिफाई ले रहा हूँ कितना टेम्पल है। कल के आगे पीढ़ी के लिए देने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है। एक एक ऐसा मंदिर हिस्ट्री है। ये गांव के अंदर 720 लोग थे, पूरा जैन परिवार। उसमें 120 लोगों ने एक क्या बोलते धोबी का काम कर लिया। एक ऐसा करके 500 लोगों के लिए अनाज बना के खिला के 700 मीटर दूर से पत्थर तोड़ के ला के मंदिरा बनाए सोए। आज उसको देखने के लिए कोई नहीं है। वो अपना पीढ़ी नहीं है, अपना दादा परदादा कोई तो बनाए हुए, अपना क्यों नहीं है? अपना मंदिरा है। आप लोगों साउथ में इधर उधर अपन मंदिरा देखे हुए तो आंख में पानी आता है। यहाँ पे बोलता है हम एक है, वो है, ये है। अरे वहां जाके देखो कौन है नहीं है अंदर। जैन बोलने से नहीं होता है, देखे तो पता लगता है अपन क्या कर रहे, क्या करना चाहिए। कि कितना काम पेंडिंग है बातों से। ये वो है, ये है, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता हूँ। अभी 1947 से अभी तक कम से कम बोले तो 70,000 मंदिरा कब्जा हो गया। पूरा 5-5 टन का पंचधातुओं को पिघला के खा लिया दूसरों लोगों ने। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर 200 मंदिर अन्य लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए। यह अपना जैन समाज सोते हुए। अब एकता नहीं हो रहा। एकता रहे हुए तो ये सब नहीं होता है। एकता रहने से कई मंदिरा, हजारों मंदिरा आज 1000 साल पुराना, 2000 साल पुराना। मैं एक मंदिर अभी पुनर्निर्माण करना चाहता हूँ। इंडिया के अंदर 2 ही टेम्पल है, 1 फीट बाय 2 फीट ईंट का है। वो हमारा तेलंगाना में एक टेम्पल है, एक मध्य प्रदेश में है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से ही लिए हूँ। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से ही अभी मैं 55 मंदिरा लिए सो है। आंध्र प्रदेश में 15 टेम्पल लिया हूँ, उसमें 5 अपना जैन टेम्पल लिया हूँ। मैं हिंदू टेम्पल्स का भी करता हूँ, इंडिया पूरे में करता हूँ। ये अभी 55 टेम्पल्स का एक लिस्ट है। मैं 108 टेम्पल का श्रीकार काम शुरू किया हूँ। 108 टेम्पल का पूरा 108 टेम्पल का पूरा प्राचीन टेम्पल खंडर होके कालगर्भ में मिल रहा है। इसको पुनर्निर्माण यदा 1000 साल पहले कैसे थे वैसे ही निर्माण करना है। ऐसी नहीं है, नहीं तोड़ के नहीं बनाने का है। पूरा इसका स्ट्रक्चर बना दिया, पूरा करके अभी काम शुरू करे हुए। इसमें 50% तिरुपति ने आगे आया फंड देने के लिए। अभी बातचीत चल रही है, 90% सबमिट कर रहा हूँ। 55 मंदिर का अभी हाथ में है। अभी बाकी का मैं ये चाहता हूँ महाराष्ट्र से भी 4-5 मंदिर मेरे को दो। मैं मेहनत करूंगा, पुनर्खड़ा करूंगा। आप लोग सब साथ रहो, साथ मिलके कुछ ना कुछ करके जाएंगे। एक ईंट लगाए तो भी एक ईंट दिखता है। 1000 साल पहले जो बनाया उसका बुनियादी के ऊपर अपना मंदिरा बनाना है, उसको पुनर्निर्माण करना है आगे पीढ़ी के लिए। अभी हजारों मंदिर बन रहा, मैं उसका नया मंदिर के लिए विरुद्ध नहीं हूँ, मगर है सब पुराना मंदिर भी अपना ही अपना धरोहर है। ये अपना पीढ़ी लोग, अपना जो दादा परदादा लोगों ने क्या क्या मेहनत करा। उस टाइम में इतना सक्षम नहीं थे तो भी रुपया जमा करके एक मंदिर बनाए। वो मंदिर आज अपना आंखों के सामने खंडर होके कालागर्भ में कोई भी कब्जा करके कोई भी अन्य में चले जा रहा। अपन बैठ के कहाँ तक सही हो रहा, ये मेरे को थोड़ा लग रहा नहीं है। सब एकता हो जाओ, एक होके ये सब बचाओ। ये धरोहर आगे पीढ़ी के लिए काम आएगा। अब अपना लिए तो चले गए, अपन 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, मतलब आगे पीढ़ी के लिए क्या दे सकते। इतना धरोहर वहां पे जमीन पड़ा है, मूर्ति पड़ा है, सब कुछ है। 20% 15% लगाए तो मंदिर पुनर्निर्माण हो जाती है। एक पुराना मंदिर, एक बार पुराना मंदिर को जीर्णोद्धार करने से 5000 साल टेम्पल को भी पुण्य मिलता है, ऐसा कहते हैं बड़े लोग। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं बोलने भी नहीं आता।
आपने एक ऐसे विषय पर रोशनी डाली है ना, मुझे लगता है कि सच बताइए इस विषय के बारे में किसको जानकारी थी, किसी को थी और किसको नहीं थी, वो हाथ ऊपर कर दीजिए। मैं तो कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। इतने लोगों को जागरूक किया है। जागृति नहीं है, जागना पड़ेगा। अभी तो कम से कम अभी तक तो गया गया परवाह नहीं है, अभी तो आगे तो साहब आपको हम बिल्ले वाला संघ की तरफ से विनती करते हैं कि आप है ना जरूर हमारे यहाँ एक बात बता रही है, आपकी स्कीम मुझे बताइए, तो हमारे से जितना होता सकेगा उतना हम जरूर आपके साथ जुड़ेंगे। साहब यहाँ पे कोई स्कीम वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ। जो भी मंदिर मिलता है मैं बताते रहता हूँ, आगे बनाते रहो। हाँ, बनाएंगे, बिल्कुल। मेरा तो निस्वार्थ सेवा है, मैं उसके लिए लड़ूंगा, बाहर निकाल के ला रहा हूँ। अभी गवर्नमेंट से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से 55 टेम्पल अभी निकाला हूं मैं उनसे। अभी पुनर्निर्माण म्यूजियम के अंदर मूर्तियां रखे थे, उसको ला के पुनर्प्रतिष्ठा करवाने के लिए चेष्टा चल रही है। अभी दिल्ली में भी मीटिंग करके आया हूँ, मगर सब साथ रहना, अकेला कहां तक कर सकता हूँ। साथ हैं, बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद आगे जैन साहब। सबसे पहले तो मैं पूनमिया जी और जीसो की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जैन इंटरनेशनल काउंसिल की ओर से। आज जिस तरह से जीसो के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, उसी तरह से जैन इंटरनेशनल काउंसिल के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन है। थोड़ा समय लेंगे, सिर्फ 1 या 2 मिनट का, आप थोड़ी सी स्थिरता रखें तो हम इस संबंध में, इस संस्था के बारे में आपसे बात कर सकें। मजा नहीं है देखिए, बात महत्वपूर्ण थी, लेकिन किसी को इसमें रुचि नहीं है तो फिर कभी मंच हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो दीपेश भाई कह रहे हैं कि अभी इस वक्त नहीं सुनना चाह रहे हैं लोग कोई, तो कोई बात नहीं। हाँ, एक बात आप बता दीजिए। कृपया शांति से 5 मिनट बैठिए। आप जैन इंटरनेशनल काउंसिल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं? हमको जस्ट 1 सेकंड 30 सेकंड दे दीजिए बस। आप ओरली दे दो 4 जैसा कि पूनमिया जी और जीसो की इस टीम ने जबरदस्त एक मुहिम, आज एक महाअभियान शुरू किया है जैन एकता का, ठीक उसी तरह से जैन इंटरनेशनल काउंसिल एक बहुत ही नई लेकिन एक ऐसी संस्था रूप लेने जा रही है जिसमें जिन शासन के ऐसे कहीं बहुत सारे पहलू जो संस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, जिसमें हमारा ऑलरेडी जिन शासन के विभिन्न संस्थाओं के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम इतनी शक्ति और साधन होते हुए भी उन चीजों का हम कार्यारोपण नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे मंच के लिए एक आवश्यकता थी कि हम फिर से एक नए रूप में एकत्रित हो और जैन इंटरनेशनल काउंसिल उस पूरी रूपरेखा का एक आंसर है जिसे हम समय मिलने पर एक बार फिर से आपके सामने रखेंगे। आज समय बहुत कम है, आपकी स्थिरता और अनुकूलता नजर नहीं आ रही है, विषय बहुत गंभीर है और इसलिए हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हुए सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार जब हम मिले एक नए मंच पर एक नए सोच के साथ आप इस संस्था के बारे में भी सुनिएगा और हमें बहुत खुशी होगी कि जो भी इस संस्था से आगे जुड़ने की और भावना रखता है वो हम आगे आपके सामने कुछ संपर्क सूत्र रखेंगे, उसमें आप जुड़िए और इस संस्था के साथ जुड़कर जिन शासन के जिस तरह से जीसो एक नए अभियान को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से जेआईसी भी एक नए अभियान को लेकर आ रही है जिसका विधिवत इंफॉर्मेशन आपको तुरंत दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को सादर प्रणाम। 10 मिनट लूंगा आप सभी का, थोड़ा 11 मिनट, क्योंकि मुझे काफी डिटेल में बातें करनी है सभी से, क्योंकि जिस चीज के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं, कम से कम जीसो क्या है, जीसो का आगे क्या भविष्य है, आगे क्या रूपरेखा है, आगे क्या विजन लेके हमें चलना है, वो बातें डिटेल में कहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आज इस प्रोग्राम में चालू दिन में आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव अपने आप में एक एक संस्था से कम नहीं है, इनका यहाँ पर आना अपने आप में जीसो के ऊपर एक बहुत बड़ा विश्वास
जो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि अब आगे राह कठिन नहीं, अभी बहुत आसान है आगे। अब एकता होके रहेगी, अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जिसो जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन के इस जैन एकता महाअभियान कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों का दिल से हार्दिक स्वागत। आज इस कार्यक्रम में श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथ, स्थानकवासी सभी संप्रदाय की संस्थाओं के माननीय प्रतिनिधियों का इस मंच पर आगमन जैन एकता अभियान के इस सहभागिता इस अभियान को और अधिक सशक्त बनाती है। आप सभी की उपस्थिति पूरे जैन समाज में आनंद और उत्साह का संचार करती है। जैन एकता के इस विषय पर आप सभी को मार्गदर्शन पूरे भारत जैन में गर्व का विषय है। वर्ष 2024 में दशहरे के दिन जीसो की शुरुआत की थी। उस समय मुंबई में नए पद्म सागर जी महाराज साहब की निश्रा में एक कार्यक्रम हुआ था। नए पद्म सागर जी महाराज साहब ने मेरे ऊपर बहुत विश्वास रखकर हमारे कार्यक्रम में आकर पूरे जैन समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया था और उस समय उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा जैन समाज कैसे एक हो सकता है इस बारे में विस्तृत जानकारी भी दी थी। तो उस समय जब महाराज साहब ने मेरे इस रिक्वेस्ट को मैंने बोला, गुरुदेव आपके निश्रा में कार्यक्रम करना है, जीतो जितनी बड़ी संस्था आपने बनाई है, जियो इतनी बड़ी संस्था बनाई है, ये संस्था पे तो मैं तो अकेला हूँ, मुझे भी तो किसी न किसी का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, नहीं तो समाज में कौन एक्सेप्ट करेगा। मैं तो एक सामाजिक चेहरा भी नहीं हूँ, मुझे सामाजिक अनुभव भी नहीं है और न अभी तक मैं कहीं किसी संस्था में किसी पद पर रहा हूँ। परंतु ऊपर वाला परमेश्वर ने कुछ मुझे प्रेरणा दी है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि मुझे अभी तक सामाजिक कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे भोलेनाथ उनकी ये रचना है जीसो, उनके मार्ग पर मैं चल रहा हूं। गुजराती में एक कहावत है, ओढ़खाण मोटी खान। इस खान को सही अर्थों में साकार किया है मेरे पिता तुल्य श्री प्रशांत भाई जवेरी ने। प्रशांत भाई आगे आओ। अब यहाँ प्रशांत भाई मारे बाजू। शायद अगर प्रशांत भाई नहीं मिले होते दुकानदारी बंद हो गई होती मेरी। और कोरोना में प्रशांत भाई को आपके लिए वापस लाया भगवान। ऊपर वाले ने इनको मेरे लिए ही बचाया है, क्योंकि देखो हम मेहनत कितनी भी करें, स्वद्रव्य कितना भी लगावे किशोर जी, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। नेटवर्किंग की बहुत बड़ी ताकत है और प्रशांत भाई के जीवन काल में इन्होंने जितने भी संपर्क, जितने भी कॉन्टेक्ट थे, अभी क्या बोलूं, इन्होंने आदानी तक को नहीं छोड़ा मेरे को मिलाने के लिए। इससे आगे तो क्या बोलूं मैं आपको। तो प्रशांत भाई आपका जो उपकार मैं जीवन में नहीं भूलूंगा और आपका ये उपकार कब मैं ऋण चुका पाऊंगा मुझे पता नहीं है। जीसो की धर्म यात्रा के दौरान हम पुणे, अहमदनगर, अहमदाबाद, दिल्ली, पालीताना, सूरत कई जगह पर गए। उसमें प्रशांत भाई हमेशा हर शहर में हर जगह पर हमेशा मेरे साथ में रहे। इनके साथ साथ भरत भाई परमार, महेंद्र भाई, नीलेश भाई जावरा से यहाँ पर पधारे हैं, हर्ष भाई मेहता एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वो भी यहाँ पर पधारे हैं। बारगांव से जितने भी महानुभाव मित्र मेरे यहाँ पर पधारे हैं, सबका दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अनिल जी चोपड़ा, राजू भाई रोहा से, अलीबाग से, आनंद से, हितेश भाई और भी कई है, सबका नाम अभी याद नहीं आ रहा और भी किसी लेकिन सभी का स्वागत है जितने भी आए हैं। जीसो की इस यात्रा के दौरान पारस चैनल की बहुत बड़ी भूमिका है। पारस चैनल से हिमांशु भाई जब पहली बार मुंबई आए थे तब
भरत भाई ने मेरी उनसे फोन पे बात कराई थी, हम कहीं एक जर्नी में जा रहे थे, तो भरत भाई ने हिमांशु भाई से मेरी बात कराई। एक छोटी सी चीज है कि खाली फोन पे एक दूसरे का संपर्क कराना, सोचो वो चीज कहां तक लेके गई। तो संपर्क करवाने का कितना बड़ा महत्व है, और हम जैन समाज में जब एक दूसरे का संपर्क कराते तो जैन समाज की कितनी शक्ति बढ़ती है, ये समझने की बात है। इसलिए हमेशा कम से कम पर्सनल लेवल पे नहीं बट समाज के लेवल पे कहीं भी कोई भी काम हो तो दिल खुल के एक दूसरे का परिचय कराना चाहिए, ताकि शासन का काम हो, इसमें किसी का पर्सनल क्या स्वार्थ है। और हिमांशु भाई जब बंबई आए और भी कई लोगों से मिले, पर उन्होंने भी मुझे कहा सुरेश भाई आपको तो कौन जानता नहीं, आपके बारे में कौन क्या बात कर रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा, होगा नहीं होगा। मैं बोला अभी वो देखो आप सोचो क्या करना है, मुझे तो काम करना है। तो बोले नहीं काम करते हैं। तो फिर हमने पारस चैनल के साथ में जुड़ के जैन एकता अभियान मंच के तत्वाधान में जैन एकता पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत की, कि कहीं ना कहीं से कुछ शुरुआत डिजिटली करें। मैं बोला तो कहीं ना कहीं समाज में एक लोग जानेंगे पहचानेंगे। तो जैन एकता पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से हमने कई गुरु महात्माओं के मार्गदर्शन में उनके पॉडकास्ट भी किए, जिनमें प्रमुख है विश्व रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब, कीर्ति रत्न सागर जी महाराज साहब, लेखेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब, प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, महाविजय विजय जी महाराज साहब, मती चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब, लब्धी चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, गच्छाधिपति धर्म धुरंधर महाराज साहब, जिनका पॉडकास्ट हमारे सोसाइटी में सेलसेट में आए थे, उसी समय उनका किया था। आचार्य जेबी गुरुदेव इनका पूना में किया था। विवेक मुनि जी महाराज साहब दिल्ली में हुआ था। और अंत में राष्ट्र संत आचार्य श्री चंद्रानंद सागर सूरी जी महाराज साहब, इन्होंने भी बहुत बड़ा विश्वास रखकर भरोसा रखकर मुझे बोला कि सुरेश भाई आप बोलो क्या बोलना है, किस विषय पर बोलना है। मैं बोला आपके मन की बात कीजिए। इसी क्रम में और भी कई गणमान्य व्यक्ति थे समाज से, जिन्होंने सबसे पहले मेरे ऊपर विश्वास किया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 13 पंथ परिषद से दिल्ली के श्री सुखराज जी सेठिया, सबसे पहला पॉडकास्ट दिल्ली में उनका शूट हुआ था। उसके बाद में जैन डॉक्टर फेडरेशन के चेयरमैन डॉक्टर भरत जी परमार, जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल चेयरमैन श्री गेवरचंद जी बोरा, और अंत में एक पॉडकास्ट जो इतना जबरदस्त वायरल हुआ, उसकी गूंज 7 समुंदर पार अमेरिका तक गई। यूएसए चाइना के प्रेसिडेंट श्री अतुल जी शाह, उनकी मुलाकात मेरी गिरीश भाई समस्त महाजन का फोन आया मुझे, बोले सुरेश भाई कल अतुल जी शाह हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, आप भी आइए और आपका भी उनका परिचय करवाता हूँ, क्योंकि आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म में आगे आपको इंटरनेशनल लेवल तक जाना है। तो हम दूसरे दिन मॉर्निंग उनके साथ में मीटिंग थी, 10-12 लोग थे, उसके अंदर देवरचंद जी बोरा भी थे, नितिन भाई भी थे साथ में मीटिंग में। तो उसी दिन मैंने अतुल भाई से रिक्वेस्ट की, मैं बोला अतुल जी आपकी जैना संस्था इतना बड़ा काम करती है, करोड़ों रुपए की चैरिटी पूरे भारत में देती है, लेकिन जैना के कार्य को अभी तक जन जन तक कोई जानकारी नहीं है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके जैना की संस्था का जो भी प्रचार प्रसार हम पूरे भारत में पूरे विश्व में करेंगे पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से। तुरंत तैयार हो गए। दूसरे दिन वो अमेरिका जाने वाले थे, बोले सुरेश भाई कल तो अमेरिका जाना है। मैं बोला आज कर लेते हैं, पूरा शेड्यूल पूरा टाइट है। मैं बोला ढीला कर दो। तो शाम को 6 बजे मैंने बोला 10 मिनट का टाइम दो। तो दिलीप भाई से बात की, सबसे पहले अवेलेबल है कि नहीं, कि उनके बगैर तो कोई पॉडकास्ट हो ही नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकते हम। फिर हमारे पॉडकास्ट की जो स्टूडियो है टीम से उनसे बात की, फिर उनसे बात की मैंने अतुल जी से। मैं बोला शाम को 6 बजे आप पधारिए, आपका पॉडकास्ट लेते हैं। बोले ठीक है। वो पॉडकास्ट पूरे इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत वायरल हुआ। मुझे कम से कम आज की तारीख में हर हफ्ते में एक बार अमेरिका से फोन अतुल जी का आता है, और उन्होंने स्पेशल एक रिक्वेस्ट की है मुझे, जो यहाँ पर मैं सभी को कहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि सुरेश जी हमने 2008 થી લઈને 2025 સુધી आज तक पूरे भारत में सभी संस्थाओं को कम से कम 50 से 60 लाख
मिलियन डॉलर हमने चैरिटी भेज दी है भारत में, लेकिन अभी तक चाइना के हमारे यूएस में करीबन 72 सेंटर हुए हैं। एक सिटी में एक ही सेंटर बनाते हैं और हमारा लक्ष्य 108 सेंटर बनाने का है। लेकिन हमारे यहाँ पर जितने भी चैरिटी आती है सारी मानव सेवा की आती है। हमें अमेरिका में देवद्रव्य के पैसे की बहुत कमी है। अगर इसके लिए कोई हो सकता है आपके जीसो के माध्यम से, तो आप ये बात जरूर सभी तक पहुंचाइएगा। 108 जैन सेंटर उनको विश्व में बनाने हैं और उनके एक जैन सेंटर में सभी संप्रदाय, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथ हो, स्थानकवासी हो, सभी की जो भी मान्यता है मानने की सब व्यवस्था एक जगह पर होती है। यहाँ तक कि वहां पर गबारे में दिगंबर और श्वेतांबर की मूर्तियां भी साथ में होती है। मुझे फोटो भी भेजा उन्होंने। तो एकता की जो मिसाल अमेरिका में वहां पर वो लोग जो कर रहे हैं, हमें भी यहाँ पर सीखना चाहिए। इवन यहाँ तक भारत में एक ऐसा मंदिर होना चाहिए जहां पर चारों संप्रदाय की मान्यता एक साथ में हो, तो वो सही मायना में जैन एकता होगी। खाली कहने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हमें सभी को आना पड़ेगा। अकेले एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब तक सभी संस्थाएं, सभी संघ, सभी श्रावक एकजुट पर एक साथ में जब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ेंगे, हम एक नहीं हो पाएंगे। निस्वार्थ और निःशुल्क जीसो काम करता रहेगा, करता है और हमेशा आगे करता रहेगा। जब जरूरत पड़ेगी दाल दातों का आश्रय लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं है। आने वाले समय में सबसे पहले तो जैन इंटरनेशनल सकल जैन महासंघ के माध्यम से सभी संघों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज ये प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद में शुरू हो जाएगा। उसमें सभी संघों को डिजिटल के माध्यम से जोड़ेंगे। संघों में क्या क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो वीडियो बताएंगे हम। उसके बाद में संघों के माध्यम से आने वाले 6 महीने के बाद मेरी प्लानिंग है करीब दशहरा के दिन, क्योंकि दशहरा के दिन जीसो की स्थापना को 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे उसी दिन जैन ऐप लॉन्च किया जाएगा। तो उस जैन ऐप के अंदर जितने भी संघ रजिस्टर्ड होंगे सारा उनका एक्सेस रहेगा। उसके बाद में जितने भी जैन संघ रजिस्टर्ड होंगे उन सबको एक डिजिटल आईडी दी जाएगी। उस डिजिटल आईडी से सारे जैन संघ अपने जितने भी जैन सदस्य संघों से जुड़े हुए हैं सभी श्रावकों को फ्री में जैन माइनॉरिटी कार्ड, संघों के नाम का कार्ड संघ के सदस्यों को मिलेगा। ऐसी हमने सुविधा दी है। जैसे विले पार्ला जैन संघ है, उसमें 1000 घर मेंबर है, 1000 घर में 5000 सदस्य है एग्जाम्पल, तो 5000 लोगों को इंडिविजुअली कार्ड विले पार्ला जैन संघ के नाम का और सदस्य के नाम का QR कोड, फोटो, मेंबरशिप कार्ड नंबर सब उस कार्ड पे होगा। तो ये आगे का रोड मैप है। पहले संघों के जोड़ेंगे, उसके बाद में संघ के माध्यम से श्रावक को जोड़ेंगे और आगे इसी के साथ में संस्थाओं के लिए भी हमने एक रूपरेखा तैयार की है। हमारे समाज में जितनी भी संस्थाएं हैं कोई ना कोई सेवा कार्य से जुड़ी हुई है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, साधर्मिक सेवा हो। हेल्थ में कई संस्थाओं के मेडिकल सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स है, इतने सारे हमारे जैन डॉक्टर्स है, कई हॉस्पिटल्स है जिनके साथ में हम टाई भी कर रहे हैं। पूरे भारत में डायग्नोस्टिक सेंटर्स की सुविधा है। जब हमारा जैन ऑफ लॉन्च होगा, हमारा 4000 डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ में टाई अप हो चुका है। पूरे भारत में कहीं भी किसी को हेल्थ डिस्काउंट वगैरह बेनिफिट सारा जैन ऐप के माध्यम से मिल जाएगा सभी नंबर। तो सिर्फ जोड़ना नहीं है, जोड़ के साथ में हर एक वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ हमने कार्यक्रम रखा है ताकि लोग जुड़े रहे। उसी तरह संस्थाएं जितनी भी है, एजुकेशन में भी, जैसे भी तेरापंथ समाज एजुकेशन में नंबर 1 काम कर रहा है। जितनी स्कूल है, कॉलेज है, मैं तो अभी महाश्रमण जी को इस लास्ट चातुर्मास में अहमदाबाद मिलने गया था, वो कॉलेज देखी तो दिमाग दंग रह गया। हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। अब हमें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक मिशन लेकर पूरे जैन समाज को चलना पड़ेगा। जहां जहां जिनालय वहां वहां विद्यालय। अगर इस कॉन्सेप्ट को लेकर समाज एक्सेप्ट करे, और उसमें हमें बहुत फायदा है। अगर कोई भी संघ के बाजू में कोई भी प्लॉट हमारा है, उपाश्रय है संघ मंदिर के अलावा,
अगर उसके अंदर उस संघ में एजुकेशन ट्रस्ट का अमेंडमेंट किया जाता है तो गवर्नमेंट से 5 गुना एफएसआई मिलती है। समझो कि 3000 फुट की जगह है तो आप 15,000 फुट बांधकाम फ्री में कर सकते हो। तो जगह के तो पैसे लगते ही नहीं है, आपके उपाश्रय बनाओ वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन का सिस्टम वहां चालू कर सकते हैं। जब तक जैसे सभी चर्च के पास में कॉन्वेंट स्कूल है, मस्जिदों के पास में मदरसे है, उसी तरह जैन जहां जहां पर जिनालय है वहां पर विद्यालय क्यों नहीं हो सकते हैं? आने वाला समय हमने हमारे बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया है, हमारे संस्कार और संस्कृति खत्म हो गई है। हम कहते हैं कि बच्चे जुड़ते नहीं है, हमने वो रास्ता बंद किया है। हमने स्कूल में इंग्लिश स्कूल में पढ़ने को भेजा है। वो अभी क्या करते हैं, रात को 12 बजे दिया बुझाते हैं, हम दिया जलाते थे। वो संस्कृति तो हमारी खत्म हो रही है, वो कैसे चलेगी? जब तक जिनालय के पास में विद्यालय नहीं होगा, हमारा जैन समाज जैन धर्म से नहीं जुड़ पाएगा। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। अब जीसो क्या है? जीसो डिजिटल प्लेटफॉर्म को आसान शब्दों में मैं समझाना चाहूंगा। जिस तरह ओला और उबेर टैक्सी का प्लेटफॉर्म है, जो लाखों टैक्सियों को और करोड़ों पैसेंजर को मिलाने का काम करता है। ओला उबेर के पास एक भी टैक्सी नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में जितनी भी टैक्सी है ओला उबेर से जुड़ी हुई है, सारे पैसेंजर को मिलाने का काम करती है। उसी तरह उसी मॉडल को ध्यान में रखकर जीसो डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है, जो सभी संघों को, सभी संस्थाओं को और सभी श्रावक को एक मंच पर डिजिटल के माध्यम से जोड़ेगा। आज जैन समाज के पधारे हुए सभी मूल्यवान मेहमानों को मेरा जय जिनेंद्र। ये संस्था जब बन रही थी तब मेरी सुरेश जी से कई बार भेंट हो रही थी। सुरेश जी ने बेड़ा उठाया, मैं बोला ये काम तो कठिन है सुरेश जी, जैन एकता का, लेकिन सुरेश जी, महेंद्र जी, भरत जी, इन सहयोगियों ने मिलकर इस संस्था के स्तंभ को जिस तरह से खड़ा किया। हमारे पास पूर्व में भी भारत जैन महामंडल जो हमारा 128 साल पुराना संस्थान है, जीतो जो 23 साल पुराना संस्थान है, बाबूलाल जी बंसाली जिन्होंने जैन संतों को एक करके जैन एकता को करने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन सुरेश जी ने एक नया मार्ग निकाला, कर लो दुनिया मुट्ठी में। इन्होंने डिजिटल कार्ड के थ्रू जैनों के एक करने के लिए जो हेल्थ कार्ड, एजुकेशन कार्ड, शांति बनाए जो बनाए, मैं सुरेश जी आपका 1.5 साल में जिस तरह से आपने संगठन को खड़ा किया, मैं आप और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज सबसे बड़ी बात, आज आपने जिन लोगों को यहाँ एकत्रित किया, सारे अपने आप में एक संस्था है। अगर ये चाहे तो अभी आपकी जैन कार्ड की संख्या कितनी है नहीं मालूम, लेकिन 2 या 3 दिन में जुड़ेंगे तो लाखों की तादाद में बढ़ सकती है। सुरेश जी, आप जैन समाज को इकट्ठा करने के लिए, एकता बनाने के लिए आपके प्रयास एकदम सफल है। 1.5 साल में आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी लोग इतने पधारे, ये आपकी सही अप्रोच है लोगों तक। नहीं तो इतने लोगों को वर्किंग डे में, और वो भी व्यापारिक वर्ग के लोग, 5 आदमी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, जहाँ आपने सैकड़ों की तादाद में लोगों को इकट्ठा किया। मैं महेंद्र जी, भरत जी, सुरेश जी, आपकी पूरी टीम को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िए। मेरे लायक कोई भी सेवा कार्य हो तो जरूर कहना। हमारे 13 पंथ के मैं एक ही आचार्य महाश्रमण, तो उनके निष्ठा में सारे काम होते हैं। किशन जी भाई साहब हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने 13 पंथ धर्म संघ के लिए बहुत काम किया है। तो आप 13 पंथ से संबंधित कोई भी काम हो, एकता से संबंधित, आप किशन जी भाई साहब से जरूर संपर्क कीजिए। ये सदैव काम करने में अग्रणी रहे हैं और उन्होंने बहुत से काम भी किए हैं। थैंक यू सो मच। रहे हैं दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी, और उसमें पहली बार मैं अमेरिका, लंदन वगैरह गया था, वहाँ चारों समाज का एक मंदिर है, वैसा ही मंदिर पालगढ़ में बनेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। 1 मिनट हर्षद पे आ जाइए। साढ़े 5 थोड़ा है राजू भाई,
આ 2500 ઘર બન્યા છે પાલગઢમાં. આપણે એને સસ્તા દરમાં આપણે આપીએ છીએ. દિગંબરને અપાઈ ગયા છે, શ્વેતાંબરને અપાઈ ગયા છે. સુરેશભાઈની ઓફિસમાં સંપર્ક કરે, આપણે એ લોકોને ઘર આપશું. ધન્યવાદ. ये आप और मैं आप सभी का आभार प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आदरणीय मंचासीन महानुभावों, माननीय विशेष अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी साधार्मिक भाई बंधु, आज जैन एकता अभियान का एक भव्य आयोजन समापन हुआ, उसमें आप सभी लोगों का योगदान हुआ और आप लोगों की उपस्थिति बहुत बहुत स्वागत योग्य थी। मैं सर्वप्रथम आदरणीय विशेष अतिथियों का श्री बकुल भाई झवेरी, श्री प्रवीण जी छोकमल जी, श्री जमुनालाल जी हपावत, श्री आर.के. जैन जी, श्री किशन जी डगलिया, गणपत जी कोठारी, श्री अश्विन जी मेहता, श्री किशोर जी खापिया और बाबू भाई शाह जो अभी चले गए हैं, वो उनका सबका भी धन्यवाद देता हूँ। अभी जैनों में एकता की बहुत जरूरत है। आज हमारे चारों फिरके हैं, हम कोशिश करते हैं। मैं भारत जैन महामंडल में भी हूँ, मैं उदयपुर में भी चारों फिरके में साथ हूँ, लेकिन जो प्रयास अभी सुरेश जी कर रहे हैं, सुरेश जी पूनमिया जीसो के माध्यम से, वो 1.5 साल में इतना अच्छा प्रयास किया है। उसके प्रयास के माध्यम से हम जैन समाज को एक सूत्र में बांध सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अगर एक रहे तो सरकार से जो भी लाभ हमें मिलता है उसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सरकार कई बार जैनों के लिए बहुत सा फंड करती है। इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि उस फंड को कैसे यूटिलाइज करें या समाज में काम करें। हमारे समाज में जो अलग अलग टाइप से जो फिरके बने हुए हैं, उसको हम अगर एक कर सके तो एक बहुत बड़ा काम होगा। जैन समाज में आज एकता की जरूरत है। पूरे भारत में जैन समाज ही सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, जैन समाज ही सभी गौशाला चलाती है, जैन समाज ही 25% भारत का GDP देती है। तो हम एक टेबल पर आकर जैन समाज की एकता का और सुरेश जी के जो काम किया है जैन समाज की चीज़ों के माध्यम से, उसको हम सफल बनाएं। और हम चाहते हैं कि पूरे देश जो भी सुन रहा है इसके माध्यम से जुड़ें। और मैं भी श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा जमुनालाल अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि सुरेश जी के साथ में तन मन धन से लग के उनकी जो भावना है उनको पूरी करूँगा। जय जैन। ये बात दूर तक जाएगी, ये मुझे लगता है। ये प्रयत्न बहुत ऊंची सोच है, बहुत उत्तम कार्य की ओर जा रहे हैं। और प्रयत्न करोगे तो काम होने वाला है। जिस तरह से युवा वर्ग इसमें जुड़ा है, मुझे लगता है भविष्य ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा यानी कि ग्रीन पूरे देखने की संसार के जैनों का एकत्र की बात है। उनका व्यापार, व्यापारिक धंधा, धर्म की क्रिया और आपस का मैट्रिमोनी से लेकर सभी तरह का जो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम को पूर्ण करने में बहुत बड़ा संस्था द्वारा होगा। मुझे तो बहुत उत्तम कार्य लगता है और सुरेश जी ने जो कार्य किया है बहुत सराहनीय है। हम उनके साथ सतत जुड़े रहें। जो कि गाना भी इन्होंने बनाया है, वो मंच सभी के लिए उपलब्ध करा देते हैं। अगर कोई ऐसी पहल है गाने की तरह जोरदार है और सबका युवा लोगों में सब जोश है, बहुत उत्तम है। बिल्कुल सर, आप समझ बहुत सकते आनंद हैं आया। कि सभी जैनों के लिए यहाँ पर बिल्कुल सुरेश भाई को तो धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आयोजन किए हुए सुरेश भाई ने। जैन एकता के लिए उन्हें तो 2 साल से बहुत बढ़िया प्रयास करते आ रहे। मैं लगभग 6 महीने पहले मैं सुरेश भाई पुनेमिया से मिला था। उन्होंने मेरे को नंबर बना के साथ में रखा था। उसके बाद में मेरा काम है ऑल इंडिया ओल्ड टेम्पल रिनोवेशन ट्रस्ट, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार का काम है। मैं इंडिया छोड़ के श्रीलंका में भी करके आया हूँ। अभी 42 कंट्री के अंदर 50,000 मंदिर खोज के निकाल रहे हैं हमें पूरा भारत भर के छोड़ के। यूनियन टेरिटरीज के अंदर 40 कंट्री के अंदर जितने भी प्राचीन मंदिर अपना हिंदुओं का जैनों का जो भी थे वो पूरा एक डाटा बना रहे हैं हमें उसके लिए पूरा। पहले ही जैन समाज का इतना योगदान है और ये वृद्धि करेगा और इतना बड़ा प्रयास है
क्योंकि इसका माध्यम है डिजिटल, और ये डिजिटल जो है वो इतने स्पीड में फैल सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा। हमने कई बिजनेस भी देखे हैं जहाँ डिजिटाइज हो जाते हैं, वो लाखों और हज़ारों की संख्या करोड़ों में परिवर्तित हो जाती है। मैंने खुद अपने अनुभव से देखा है, तो मुझे लगता है सुरेश जी का ये प्रयास जो है बहुत ठोस है, वेरी वेल फाउंडेड, और बहुत ही सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं। सॉन्ग जो लॉन्च हुआ है, एक होता है ना कि एकता को लेकर के कुछ प्रोग्राम या समाज का कुछ प्रोग्राम होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग जाके ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन सॉन्ग भी बनाए तो युवाओं को कितना प्रेरित करेगा? सॉन्ग तो ऐसा जोड़ देता है, इंडिया का संगीत ये सबको बांधे हुए हैं एक साथ, तो सॉन्ग विल ऑलवेज, और उसके भी आपके 2 वर्जन हैं, द यूथ वर्जन है और वेरी पैपी, वेरी नाइस, और ऐसा लगता है जैसे खून गर्म हो जाता है। आई फेल्ट वेरी गुड, अमेजिंग, और ये सुरेश जी को मैं एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि जैन समाज की एक और संगठित शक्ति का वैश्विक प्रतीक है। प्रत्येक जैन संघ अपने स्तर पर जैन एकता को केंद्र में रखते हुए धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भव्य आयोजनों के माध्यम से इस भावना को और अधिक सुदृढ़ मैं सूरज जी से कहना चाहूँगा सभी पंथों और सबके लिए एक मंच पर हर जैन चाहता है कि एकता हो, और ये प्रयास और जैन सालों से किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा हो नहीं पाता है। और हम हर बार बोलते हैं कि भाई संतों की तरफ से प्रॉब्लम है, बहुत बार ऐसा होता है श्रावकों की तरफ से, लेकिन प्रॉब्लम तो है। लेकिन डिजिटल मीडिया जब से आया तब से थोड़ा बिलीव बढ़ गया कि आप एक्चुअली डिजिटली भी हमको मालूम पड़ गया कि एग्जैक्ट जैन कितने हैं, तो जैन एकता का एक रास्ता बन जाएगा कि आपको एक बार मालूम हो गया कि भाई डिजिटली हमारी इतनी संस्था है, इतनी कॉलेज है, इतने गर्ल्स है, इतने बॉयज है, कितने स्टेट में, कौन से स्टेट में कितने लोग रहते हैं, दुनिया में कितने जैन है। अक्सर होता है कि सब लोग बोलते कि 2011 के सेंसस के हिसाब से हम लोग सिर्फ 44 लाख है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग 2 करोड़ के ऊपर है। तो आपका एक बार आपको इतना मालूम हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है जैसे ही डिजिटली हम लोग डिजिटली फिक्स आंकड़ा हमारे पास आ गया तो उस दिन से जैन एकता का रास्ता खुल जाएगा। समाज की एकता शक्ति आने वाले समय हो जाता है, लेकिन हम सनातन को या देखो, आदमी दुनिया जब से बनी है तब से एकता का माहौल है। आप देखो, पहले आदमी अकेला पैदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो एक ग्रुप में रहने लगा, झुंड में रहने लगा। तो जब आपकी एकता होती है तो आसपास में जो चीजें होती रहती है उसको आप आराम से फेस कर सकते हो, फिर वो आप सोशली हो, पॉलिटिकली हो। जैसे आपने अभी देखा कि एक रहेंगे तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, भले ही आप फैमिली हो, फैमिली में एकता होती है तो वो फैमिली आने वाली सब आपदा, एक भाई को नया घर करना है तो भाई सब इकट्ठा होता है, शादी करनी है तो इकट्ठा होता है। ऐसा एक फैमिली, एक गांव, एक डिस्ट्रिक्ट, एक देश, पूरी दुनिया, जो एकता का तो महत्व है ही है। थैंक यू। यस, जो इतना बड़ा ये आयोजन किया है एकता को लेकर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथ सुरेश जी ने जैन एकता जीसो जो बनाया, उसको जैन एकता फाउंडेशन जो इन्होंने बनाया है, उसके माध्यम से ये जो काम कर रहे हैं, और जिस तरह से मैं पिछले 1.5 साल के इनके प्रयासों को देख रहा हूँ, इनको काफी सफलता बहुत
कम समय में मिली है, क्योंकि इन्होंने दिन रात एक ही चीज जीसो जैन एकता को कैसे एक करे, और इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है जैन डिजिटल कार्ड के माध्यम से। जैन डिजिटल कार्ड इन्होंने कई रूप में निकाले हैं, जैन एकता के लिए निकाला है, एजुकेशन के लिए निकाला है, हेल्थ के लिए निकाला है। मैं सुरेश जी को इन प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आज जितने लोग आपके इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसको बहुत बड़ी सफलता आने वाले भविष्य में मिलेगी। इससे पहले बाबू भाई भगवान जी का जय जिनेंद्र, तो कई सालों से सिर्फ बात होती थी जैन एकता हो जाओ, जैन एक हो जाओ, जैन एक हो जाओ, लेकिन एक जैन का मर्द बच्चा पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड को, सभी जैनों को एक कर रहा है। इसलिए सारे जैन जो है वो उनको अभिनंदन देते हैं। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आने वाले युगों के लोगों को भी एक नई प्रेरणा मिलेगी, एक नई शक्ति मिलेगी। और हमारा जो कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी, जो बहुत ही पावरफुल है लेकिन एकत्रित नहीं है, और एकत्रित होने का काम जो सूरज जी ने किया है, और आज यहाँ सारे समाज के सभी वर्ग के जैन एकत्रित हुए, और वो एक बहुत बड़ी ताकत ये जैनों को मिलेगी। और आने वाला भविष्य जहां आज जरूरत है, आज वर्तमान को वर्धमान की जरूरत है, वो वर्धमान का संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम ये जैन संस्था कर रही है। इसको लिए मैं उनको अभिनंदन देता हूं, बार बार अभिनंदन देता हूं, सल्यूट करता हूं। यही काम जो है आने वाले टाइम पे रंग लाएगी और हमारे नौजवानों को और उत्साहित करेगी और एकत्रित करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय जिनेंद्र। अभी के जो युवाओं को अगर अपने को साथ में लेना है तो ये प्रोग्राम बहुत ही जरूरी था। समय की मांग के हिसाब से इसको सुरेश भाई ने सबको एक तो किया है, और उसके साथ साथ जो मध्यम वर्गीय जैन है जिनको कोई भी खुद के घर नहीं ले सकते, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सोचा है। और उन्होंने एक पालघर में मध्यम वर्गीय जैन लोगों के लिए एक आवास योजना का शुरुआत की है, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। ये मेरे हाथ में जो पेपर्स दिख रहे हैं, तो वहाँ जैन लोगों के लिए, चारे फिरकाओं को जैनों के लिए ये हमने एक प्रयास किया है। ये भी जरूरी है और ये समय की मांग थी, और डिजिटल के हिसाब से युवा इसमें ज्यादा जुड़ेंगे। फिर से एक बार सुरेश भाई का खूब खूब धन्यवाद। और हम सब एक है, हम सब साथ है, जैन समाज एक है। जय जिनेंद्र। जीवों को बहुत बहुत अभिनंदन। आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, यहाँ चारों जैन समाज दिगंबर तेरापंथी स्थानकवासी सबकी ओर से एक गाना लॉन्च हुआ, और अभी कुछ ही समय में जैन एकता का आपको दिखाई दिएगा। सुरेश भाई को लाख लाख अभिनंदन। और आज कोलवाड़ भवन में 200 जो ट्रस्टों की ओर से एकीकरण का हुआ, उसके लिए अभिनंदन। ऑल इंडिया जैन श्वेतांबर कॉन्फ्रेंस, भारत जैन महामंडल और जैन समाज की ओर से सुरेश भाई पुनमिया को अभिनंदन। और हम उसी क्षण में पालगढ़ में हम 2500 जैन घर बना रहे हैं, उस घर में भी हम जैनों को लाभ मिलेगा। और दिगंबर तेरापंथी स्थानकवासी ये पहला एक मंदिर होगा जो चारों जैन समाज का एक होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आना था ना हमको साथ में, चलते रहो, गाड़ी चलते रहो, गाड़ी चलती रहो। आजकल जो सबसे बड़ी बात है कि वो पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो। वो पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो। और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धारा है प्रतिकूल ना हो। तो युवा का जो उल्टा होता है वो वायु होता है, और वायु के वेग से जो उल्टा चलता है, जो उल्टी धारा में चलता है, उसे युवा कहते हैं। तो गाना बनाया गया है निश्चित तौर पर आज का जो युवा है वो ट्रेंडिंग, अपनी जो सिस्टम है उसमें चलता है कि क्या ट्रेंडिंग है, हमेशा उसकी ओर, वायरल जो हो रहा है उसकी ओर जाता है। निश्चित तौर पर ये जो गाना है ये जैन समाज में और जैन युवाओं में एक नई क्रांति लेकर आएगा। और जीसो जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन
जो भागीरथी प्रयास, जैसे गंगा को भागीरथ द्वारा लेकर इस धरती पर आया गया था और आज वो समूचे भारत की प्यास को बुझाने का कार्य कर रहा है, ऐसे ही जैन समाज के भागीरथ के रूप में शायद मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे सुरेश जी पुनमिया को याद रखा जाएगा। क्योंकि जब आज डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं तो डिजिटल जैन डायरेक्टरी, डिजिटल जैन संघ और समूचे जैन समाज को डिजिटली रूप से अगर लाने का एक पटल पर अगर कार्य किया है तो वो हमारे सुरेश जी भाई साहब ने करा है। मैं अंतर्मन से शुभकामनाएं देता हूं भाई साहब को कि जीसो जो हमारा संगठन है वो विश्व के सर्वोच्च शिखर पर निर्विघ्न रूप से स्थापित हो। अरिहंत परमात्मा की खूब कृपा आप पर सदा बरसती रहे और हम भी जो आप इस महा आहुति को, जो अश्वमेध यज्ञ को लेके चले हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक छोटी सी आहुति देने का प्रयास हम भी तन मन धन समय समर्पित करके कर सके, यही मंगल कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं आप सभी चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपके माध्यम से आज जैन एकता विषय पर जो यहाँ चर्चा हुई और उस चर्चा में आज का जो ये जैन एकता इंटरनेशनल सॉन्ग लॉन्च हुआ जिसो के माध्यम से, जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सभी जैनों का है एक डिजिटल डेस्टिनेशन, सभी जैनों का है एक डिजिटल डेस्टिनेशन, प्रशंसनीय है जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्लानिंग ऐसी हुई कि प्रशांत जी ने मुझे कॉल किया और मुझे बोले कि मैं आपको जीसो के फाउंडर सुरेश पुनमिया जी से मिलवाता हूं, उनको एक गीत बनवाना है जैन एकता पे। तो हम लोग चलते हैं, उनके ऑफिस गया, उनसे बात हुई, चर्चा हुई। तो सुरेश जी ने कहा मुझसे और मार्गदर्शन भी किया कि जीसो का क्या मतलब क्या कहना है, जीसो का क्या मर्म है, जीसो क्या कहना चाहता है। ऐसे तो हम डिजिटली बात पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन गीत के माध्यम से काफी लोग जुड़ेंगे, युवा जुड़ेंगे और सारी पीढ़ियां इसमें जुड़ेगी, क्योंकि जैन एकता की बात हम जीसो के माध्यम से कर रहे हैं। तो फिर मैं वहां से मैंने उनसे विदा ली और रास्ते में ही कुछ लाइनें बनी और वो लाइनें फिर आगे डेवलप हुई और उसके बाद ये गीत बना जो आप सबके सामने आज लॉन्च हुआ। हम महावीर के अनुयायी हैं, उनके पथ पे चलो। हम महावीर के अनुयायी हैं, उनके पथ पे चले। एकता के सूत्र में हम सब बंधे रहे, यही जीसो का मिशन है, हम जाने की रहे हो। यही जीसो का मिशन है, हम जाने की रहे। पंथ भले ही न्यारे हो पर एक पथ पे चले। पंथ भले ही न्यारे हो पर एक पथ पे चले। यही जीसो का मिशन है, हम जाने की रहे। जैन एकता जिंदाबाद, जैन एकता जिंदाबाद। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। बहुत बहुत धन्यवाद और महावीर जन कल्याण की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और सब जैन होकर जैन एकता दिवस जो हमारे आदरणीय सुरेश पुनमिया जी ने जो आह्वान किया है कि महावीर जन कल्याण पर जैन एकता दिवस हम मनाएं और यही महावीर के पथ को अपनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम सारे जैन एक होकर आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जैन एकता महाअभियान का दिव्य आयोजन यहाँ हुआ, काफी लोग उत्साहित थे और आपने जो सॉन्ग बनाया है, रवि जी ने गाया है, उसको लेकर के सुन करके लोग झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस तरह से आपका सपना तो पूरा ही हो गया है लगभग देखे तो, क्योंकि एक ही स्टेज में चारों संप्रदाय को वरिष्ठ वेटरन जो लोग हैं आके बैठे थे। आज का एक कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, विशेषकर रवि जी ने जैन एकता सॉन्ग की जो परिकल्पना की और जिस तरह से बनाया है, इस सॉन्ग को आने वाले तीर्थंकर महावीर जन्म कल्याण दिवस के अवसर पर सभी संप्रदाय वरघोड़े में इस सॉन्ग का
उपयोग करे और आने वाले युवा पीढ़ी को जैन धर्म से जोड़ने के लिए ये सॉन्ग बहुत बड़ा कार्य करेगा, ऐसा में पूरा विश्वास है। कि आपके मन में ये कब आया कि एकता को लेकर के प्रयास करना चाहिए समाज में आने के लिए? क्यों विचार आया, क्यों करना चाह रहे थे? और जब कोई भी इंसान सभी तरह से परिपूर्ण हो जाता है, फिर उसके बाद में जब उसकी जो सारी इच्छा तृप्त हो जाती है, फिर मन में एक सवाल उठता है कि अब आगे क्या। तो उसका सवाल ढूंढने के लिए हमने परमेश्वर के साथ में काफी कुछ, मतलब भगवान की प्रेरणा से ये सारी चीजें होती है। हम तो सिर्फ माध्यम होते हैं और मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, ना तो सोशल चेहरा हूं, ना सोशल एक्सपीरियंस है, लेकिन सभी का प्रेम है, ये चीज आगे बढ़ती है और हम करते जाते हैं। नहीं, आपका सर अथक प्रयास है। आपने तो अभी 2 साल ही भी पूरे नहीं हुए हैं और आई थिंक कितने लोग 2 लाख जिससे जुड़ गए हैं आइलॉजिकली माध्यम से, आई थिंक 1 लाख के आसपास। ये तो एक झांकी है, पिक्चर भी बाकी है। ये तो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें रमत गमत में 2-2.5 लाख मेंबर हो गए। मेरा तो टारगेट 2 करोड़ मेंबर का है। एकता को लेकर के गाना बनाया, नेक्स्ट कदम क्या होगा? म्यूजिक को लेके या शॉर्ट फिल्म को लेके या एकता को लेकर के क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? अभी जैसे हमने जैन एकता का सॉन्ग रिलीज किया, इंटरनेशनल सकल जैन महासंघ के माध्यम से सभी जैन संघों को डिजिटल रजिस्ट्रेशन करने का भी विमोचन किया। इसके बाद में नेक्स्ट सभी संस्थाओं को डिजिटली रजिस्ट्रेशन का भी हम चातुर्मास में विमोचन करने वाले हैं नेक्स्ट। तो उसमें कैसे सभी संस्थाएं जुड़ेगी तो उनको क्या फायदा होगा, नहीं तो कोई क्यों जुड़ेगा, तो कौन किसको क्या मिलेगा, उस चीज को ध्यान में रख के हम सारी चीजें बना रहे कि कोई भी जुड़े तो उसको कुछ कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो संघों को भी बेनिफिट होगा, संस्थाओं को भी बेनिफिट होगा, श्रावकों को भी बेनिफिट होगा, संत महात्मा को भी, विशेष करके विहार ग्रुप में आज जो भी दुर्घटना वगैरह होती है उसके लिए भी हमने रोड मैप बनाया हुआ है। जब हमारा जैन मोबाइल ऐप आ जाएगा तो उसके अंदर इमरजेंसी बटन दिया जाएगा। बिहार ग्रुप में आते समय जाते समय कहीं भी कोई भी दुर्घटना अकस्मात होती है तो इमरजेंसी बटन के माध्यम से 3 ऑप्शन दिखेंगे। उसके अंदर नियर बाई पुलिस स्टेशन, नियर बाई जैन संघ, नियर बाई हॉस्पिटल्स ऑप्शन रहेंगे। कोई बटन नंबर डायल नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना। पूरे इंडिया में कहीं भी हमारा सब रहेंगे, नियर बाई पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स और जैन संघ को कांटेक्ट करके मदद ले पाएंगे। तो काफी कुछ चीजें हमने इसके अंदर डिजिटली करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ही महीनों से देखा जा रहा है अपने पारस टीवी पर कई वरिष्ठ लोग हैं और साधु संत भी है जो जिसों की तरफ से पॉडकास्ट के माध्यम से जैन एकता को प्रचारित किया जा रहा है। ये कब से? करीब 6 महीने हो गए हमको शुरू करके, और इस 6 महीने में बहुत सारे गुरु भगवंतों का और बहुत सारे समाज के बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों का हमें समर्थन मिला, सहयोग मिला, और उन्होंने सबसे पहले तो मेरे ऊपर विश्वास किया। नहीं तो आज समाज में किसी नए व्यक्ति को कौन खड़ा करता है? कोई पीछे सोशल बैकग्राउंड नहीं, न कोई जानता है। तो राह कठिन बहुत थी, आसान नहीं थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक जिद पकड़ के चलते ना, तो टूटते हैं, गिरते हैं, लेकिन फिर उठते हैं, वैसा हिसाब किताब है। एक लास्ट सवाल करेंगे आपको, मतलब परिपक्व होकर के भी बोलते ना सुनो तो इसे लड़के आप मंजिल प्राप्त कर रहे हैं, जो आपका सपना है एकता को लेकर के। इस वक्त जो समाज के युवा है, युवाओं को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे एकता को लेकर और उनकी सक्सेस को लेकर, लोग किसी भी फील्ड में हो? एकता को लेकर सभी युवाओं से ये निवेदन है कि भी जैन समाज में धार्मिक प्रक्रिया बहुत है, लेकिन आज का युवा वर्ग धार्मिक प्रक्रिया में बिलीव नहीं करता है, क्योंकि हमारे धर्म में नियम वगैरह बहुत कड़क है। शायद ये बहुत बड़ा कारण है कि युवा नहीं जुड़ पाता है, क्योंकि हमने नई जनरेशन को वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़ाया है। तो ये नियमों में बंधकर वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें कहीं ना कहीं नियम पालन की बजाय हमें उन्हें इंसानियत धर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैन धर्म से जुड़कर, कैसे साधर्मिकों की सेवा करनी। तो इन चीजों में युवा को बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मंदिर जाना, पूजा करना, प्रतिक्रमण करना ये धर्म नहीं है। मेरी नजर में धार्मिक क्रिया है, और पूरे समाज ने इसी को धर्म समझ लिया है। हकीकत में धर्म तो इंसानियत धर्म से ऊपर कोई धर्म ही नहीं है, और उसको हम समझते ही नहीं है। पूरा जीवन भर धार्मिक क्रिया में पूरा जीवन व्यतीत करके पूरा जीवन ऐसे हम खत्म कर लेते हैं और कुछ हासिल नहीं होता है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी आप गरीब की सेवा करो, उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है जो पूरे साल पूजा करके नहीं मिलेगा।
लास्ट जीसू से कैसे जुड़ा जाएगा, कैसे जो नए लोग हैं किसी को पता नहीं है फिर वो जीसू के बारे में सुनता है तो कैसे जुड़ेगा, थोड़ा सा आप डिटेल। जीसू से जुड़ने के लिए एकदम आसान तरीका है, एक मोबाइल नंबर है 9059054563। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें, आपको लिंक प्राप्त होगा और मेंबरशिप मिल जाएगी। एकदम इजी साधन है। किसी भी संगठन से कंपटीशन नहीं है, जीसू का एकमात्र उद्देश्य है सकल जैन समाज को एक करना। बिल्कुल अर्जुन ने जिस तरह से एक आंख से तीर का निशाना, जो अपने तीर का और मछली का जिस तरह से निशाना बनाया था, इसी तरह जीसू का मात्र एक और एक प्रकल्प है कि संपूर्ण जैन समाज को एक सूत्र में पिरोना और एक माला में पिरोना। इस व्यक्ति की मैं पीठ पीछे तो तारीफ करता हूँ, लेकिन आज मुझे ऑन स्क्रीन तारीफ करने का मौका मिल रहा है। तो सुरेश जी भाई साहब, जिनको समाज सेवा का स भी नहीं पता था, इस व्यक्ति ने धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ते जो है आज इस मुकाम तक पहुंचे। उन्होंने पहले दिन से ही कहा था कि नीलेश भाई किसी से कोई कंपटीशन नहीं, जितने भी संगठन है इस भारत में इवन इंटरनेशनली किसी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। सभी संगठनों का जीसू में स्वागत है। मैं दिल खोलकर आप सबका वेलकम करना चाहता हूं, आप सभी आए और इस संगठन से जुड़े और जैन समाज की ताकत बने। तो जीसू का जो एकमात्र एक ही हमारा लक्ष्य है कि उनको संपूर्ण जैन समाज को एक। बिल्कुल सही कहा कि इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि फिजिकल जैन एकता हम हर जगह देखते हैं, लेकिन मैं इनके लिए यही कहना चाहूंगा कि सारे जैनों का है एक ही डिजिटल डेस्टिनेशन। आपने इससे पहले कोई डिजिटल देखा नहीं होगा कि जैन एकता के लिए डिजिटल कोई प्लेटफॉर्म खड़ा किया हो। सभी जैनों का है एक ही डिजिटल डेस्टिनेशन, प्रशंसनीय है जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन। इसी के लिए बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। कहते हैं हमने कई इवेंट्स में आपको देखे हैं, आज भी आप यहाँ ज्वाइन हुए, सम्मिलित हुए, आपने बहुत खूबसूरत म्यूजिकल सॉन्ग देखा जैन एकता को लेकर के, और ये सूरज जी के जो राष्ट्रीय से एकता को लेकर के आज सॉन्ग लॉन्च किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बात बताता हूँ, जब तक जैनों का एकता में सूरज जी का ये सहयोग है ना, तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज जिस तरह से चार फिरकाओं ने इनका जो सराहनीय किया, प्रयास किया, ये सूरज भाई 2 साल से कर रहे हैं। सूरज भाई उस टाइम अकेले थे, लेकिन कहते हैं ना कि मैं तो चला, मेरे साथ कारवा भी जुड़ता चला। धीरे धीरे सूरज भाई के साथ हम ऐसे जुड़ने वाले हैं कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम सूरज भाई को छोड़ने वाले नहीं है। सूरज भाई जो हमें आदेश देंगे, सूरज भाई जो काम करना चाहेंगे हम करेंगे। लेकिन हमारा आज एक ही प्राण है कि सूरज भाई का जो सिद्धांत है जीसो का वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 पहुंचाने का, और वो हमारे अगले पीढ़ी को हम देना चाहते हैं कि जैनों में कितनी एकता है, जैनों में कितना है। आज हम 95%, 99% हम शिक्षण में पूरे शिक्षित है, इनकम टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, हम इतना दान दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, फिर भी आज जैनों की इतनी जो समाज में होना चाहिए प्रतिभा उतनी नहीं गिनी जा सकती है। पॉलिटिकल भी हमारा इतना नहीं है। मैं तो सुरेश भाई से आज भी बोलता हूँ कि जीसो को इतना मजबूत बनाओ कि जब अगले इलेक्शन के टाइम में भी आज हम सब लोग को पूछे कि भाई आप जीसो में कोई मेंबर को खड़ा रखना चाहते हैं तो सुरेश भाई के पास आए। जीसो को लिए हम बहुत आशावादी है। सुरेश भाई को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और खरेखर एक उम्दा काम किया है और एक निस्वार्थ प्लेटफॉर्म किया है, उसके लिए मैं दिल से उनको खूब हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। की बात को लेकर के कहे तो जीसो की तरफ से पॉडकास्ट हुआ था भारत टीवी पे, भाईंदर से 4 पार्षद, चारों पार्षद जीते, और इस बार तो कम से कम 50 पार्षद पूरे महाराष्ट्र में जैन कम्युनिटी से आए हैं। यही तो बताना चाहता हूँ कि 2 साल पहले का ये नतीजा है। अगले 5 साल आने दो, 5 साल के बाद लोग हमें पूछेंगे कि जीसो का कौन से उम्मीदवार को आप रिपीट करना चाहते हो या क्या नवी उम्मीदवार को चाहते हो। ये प्लेटफॉर्म पे हमें पहुंचना है। जीसो की ताकत धीरे धीरे सबको मालूम पड़ जाएगी कि फ्यूचर में इसकी ताकत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। एक आदमी अकेला दिखला है लेकिन पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को साथ में लेकर चल रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसके लिए मैं जीसो की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, आप सबकी भी तरफ से सुरेश भाई को बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले 5 साल के बाद देखिए जब हम यहाँ वापिस मिलेंगे तभी आप पहचानेंगे कि सुरेश भाई का कद कितना बड़ा हो गया है। ये आदमी निस्वार्थ सेवा दे रहा है, उसको कोई मन में नहीं है, बस एक ही मन में है उसके साथ कि मेरा समाज, मेरा धर्म और मेरे लोग कितना आगे बढ़े और उनको कौन सा बेनिफिट है
खरेखर उच्च विचार है। और उनके आज उनके माताजी पिताजी को भी मैं नमन करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने संस्कार दिए हैं, क्योंकि ये आदमी अकेला दिखला था और अब हम साथ में रहेंगे। सुरेश भाई जो काम करेंगे हम करेंगे, लेकिन हमारा दिल से उनका आशीर्वाद है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको धन्यवाद, नमस्ते। खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे सुरेश जी का परिचय हुआ और इन्होंने अभी मुझे आज मौका दिया और इस मंच पे, और बहुत ही आनंद हुआ। और आई एम फीलिंग प्राउड दैट वी ऑल आर जैन्स। और सुरेश जी बने रहिए जी, हम आपके साथ हैं। बस आपका आशीर्वाद ही हमें निरंतर प्रेरणा देते रहेगा। आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें नई ऊर्जा देगा। पूरी तरह साथ। यस यस। तो धन्यवाद सर, जीसू की तरफ से और जैन मास्टर की तरफ से आज और एक गाना भी लॉन्च जैन एकता को लेकर के, आपने गाना देखा सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय जिनेंद्र, मैं डॉक्टर विनोद कोठारी, मैं भी जीसो से जुड़ा हुआ हूँ। जीसो जे इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन, जिसके नाम में ही सेवा है, काफी अच्छी तरह से समाज के लिए जागरूक है, सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। काफी उत्साह लोगों में, जैन समाज अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे संघ जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे ट्रस्ट जुड़ रहे हैं। जो ये विजन है, जैन एकता का विजन, वो जीसो में दिखाई दे रहा है और हर समाज को ऐसा जीसो की जरूरत है। तो आप सबसे निवेदन है, जीसो से ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। आपका कोई भी मेडिकल हेल्प चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, समाज को कोई भी हेल्प चाहिए, तो जीसो हमेशा उसके लिए रेडी है, तैयार है। तो जीसो का कार्य तो है, तो अभी ये तो क्या बोलते बूंद है, अभी सागर बाकी है। उसके हिसाब से वो और बढ़ता जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बढ़ते रहेगा, यही विश्वास रखते हैं।